اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنات والمؤمنین والمسلمات والمسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج الحمدللہ وہ دن ہے، جمعے کا دن ہے، جس میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پڑاؤ میں آ جائیں گے، وہ شروعات کریں گے زندگی کی، جو انشاءاللہ میری پوری امید ہے میرے رب سے کہ جیسے اس نے میری زندگی میں سکینت عطا کری، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی زندگی میں سکینت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ عملیات پہ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ باتیں تو بہت آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، جگہ جگہ عالم ہے، جگہ جگہ یوٹیوب میں چینلز میں بہت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سنتے ہیں، پر ہمارے کام پھر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے دھیرے دھیرے پتہ چل جائے گا۔ تو ہم پہلے عمل کی سٹارٹنگ کریں گے، اور بیچ بیچ میں آپ کو میں روزانہ ایک چیز بتاتی رہوں گی، تو انشاءاللہ دماغ کے اور دل کے تار کھلیں گے، تو یہ سارے ذکر کا انشاءاللہ ہمیں بھرپور فائدہ ملتا رہے گا، اور وہ فائدے میں بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ، ایمان میں بھی بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ، عملیات میں بھی بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم روزانہ کیا کریں گے۔ دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی چھوٹے، اچھا تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں ڈیلی، تو وہ آپ نوٹ بک آپ نے لے ہی لی ہوگی میرا آڈیو سننے کے بعد، تو اب آپ نوٹ بک کو کھولیں اور ڈیلی ہم کیا کریں گے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1، ہم ڈیلی تسبیح، جو مین ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ تسبیح پڑھنا ہے، ڈیلی تسبیح ہے۔ اچھا وہ آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں کچھ خصوصاً ایسی ہوگی کہ کچھ پریشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتائی، ہمیں سکھائی ہے، تو صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، تو وہ ساری، اور ان کا اثر بھی ہے، تو وہ ساری تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرٹیکولر کچھ صلاح کے بعد بھی ہے، کچھ 24 گھنٹے میں کبھی بھی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1، کل ملا کے ڈیلی ہم تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ڈیلی ایک اچھا کام کریں گے، کوئی بھی ایک اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، جیسے کسی کو ہم ہنسا دیں گے، ہے نا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ اچھے کام وہ آپ کو ڈھونڈنے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے معافی مانگ لیں گے، کسی کو معاف کر دیں گے، کسی کو کھانا کھلا دیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے، ہے نا، کسی کی تکلیف سن لیں گے صرف، اور اس کا من ہلکا کر دیں گے، پر ایسا نہیں کہ سن کے آگے بتاتے رہیں، دنیا کو گاتے رہیں، نہیں، کسی کی تکلیف کو سننا اور اس کا دل ہلکا کرنا، اس کو دلاسا دینا، اس کو تسلی دینا، یہ بھی نیک کام ہے نا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ تم اچھے رہو گے، میں تمہارے ساتھ اچھا جاؤں گا، تو ہمیں ڈیلی ایک اچھا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کریں، کتوں کو، بلی کو، چیٹیوں کو کھانا کھلائیں، ہے نا، ان کو پانی پلائیں، کوئی بھی ایک اچھا کام اپن کو ڈیلی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیلی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، تو ڈیلی ایک حدیث پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ جنہوں نے 40 حدیث کو پڑھ لیا، یاد کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا، تو اس پہ جنت واجب ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم روزانہ، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں نا، کنٹینیوسلی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یاد بھی ہوتی ہے، عمل بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں اب بس ڈیلی کرنا ہے، تھوڑا کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ڈیلی ایک حدیث سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور
आप फिर देखते जाइए क्या होता है आपके साथ, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है डेली एक सूर्य या आयत। सूर्य छोटी होगी तो हम सूर्य को कवर कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे छोटी सूर्य कम है, 30वें पारे में ही है, बाकी फिर आगे बड़ी बड़ी सूर्य भी आएगी। तो उनमें से कुछ चंद आयत हम लेंगे, उनका तर्जुमा सुनेंगे और उस पर अमल करने की अल्लाह से वादा करेंगे, नियत करेंगे, अल्लाह से पक्का वादा करेंगे उस पर अमल करने की, ठीक है। फिर 5 नंबर है डेली एक बुरी आदत को छोड़ने का अपने आप से वादा करना है, ठीक है ना। आपको कहीं यहाँ प्लेटफॉर्म में बताना नहीं है कि मेरी ये आदत है मुझे छोड़नी, नहीं। आपको अल्लाह से और अपने आप से, बस, और किसी से जिक्र ही नहीं करना है, अल्लाह और आपके बीच की बात है। डेली एक बुरी आदत छोड़नी है बस। पर यह है कि अपनी इसलाह, देखो सबसे पहले अपनी इसलाह करनी है, ठीक है ना। मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, कई बातें निकलेगी तब हमें एहसास होंगे कि यार ठीक है, हम बहुत देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम गुनाह भी कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम कभी कभी तो ये और ज़्यादा ये और होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि अरे ये नेक काम है, और हम वो गुनाह होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम आगे आपको पता चल जाएगा, मैं अभी डिटेल में नहीं बोल रही। तो डेली एक बुरी आदत छोड़नी है और अपने आप से वादा करना है, ठीक है, ताकि वो दोबारा वो बुरी आदत हमारी ज़िंदगी में मरते दम तक ना आए। फिर छठा नंबर है हम डेली एक दुआ करेंगे। डेली एक दुआ मतलब सुबह से लेके रात तक हर चीज़ की अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई है, ठीक है ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने रूटीन में दुआएं डाली थी वो दुआएं हमें करनी है, क्योंकि कुल मिला के देखिए कुरान पाक में हर जगह बार 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 एक ही बात बताई गई है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब तुम मेरे अल्लाह की इताअत करो और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मीन्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, मतलब हमने अल्लाह को फॉलो कर लिया, ठीक है। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें सिखाने के लिए, वो हमारे टीचर है, हमारे सरदार है। उन्होंने हमें जो कुछ सिखाया है हमें उसी के हिसाब से चलना है। तो हमारे दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हम डेली एक दुआ सीखेंगे, उसमें आपको डेली एक दुआ जो भी मैं बताऊंगी नोट डाउन करनी है, आपको लिखनी है। उसका तर्जुमा भी मैं लिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो वो भी लिखना है। और तर्जुमा अपन लिख के दुआ करेंगे तो दुआ याद भी रहेगी, और नहीं याद रहे क्योंकि यहाँ पे हर इस ग्रुप में हर एज के बंदे हैं, हिफ्स कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे, है ना। छोटे बच्चों को तो याद हो जाएगा पर बड़ों को याद नहीं होगा। तो वैसे हिफ्स का तरीका है, हिफ्स हो जाता है इंशाल्लाह, तो वो भी बताएंगे। और फिर वो उसका जो तर्जुमा है वो तो अपनी लैंग्वेज में होता है तो वो तो याद ही हो जाता है, तो आप तर्जुमे मतलब हिंदी में भी वो दुआ कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो वो करना है। फिर सेवन्थ नंबर है हम नमाज का ट्रांसलेशन मतलब नमाज का तर्जुमा सीखेंगे। नमाज में जितनी भी सना से लेकर और लास्ट जो हम क़याम में आयतल कुर्सी, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा, और इसके अलावा भी और दुआएं हैं जो मैं खुद पढ़ती हूँ, तो वो दुआएं उन सब के तर्जुमे के साथ हम इंशाल्लाह उसको नोट डाउन करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और अमल करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है अमल की। इल्म सबको है, मैं बार बार कह रही हूँ, सबको पता है। जैसे नॉर्मली बात है कि एक मुसलमान है, उसको 5 सुतून पे चलना है, इस्लाम 5 पिलर्स पे बना हुआ है, तौहीद है। पर हम तौहीद पे अमल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें खुद झांकना है अपने गिरेबान में। फिर दूसरा है कि नमाज, तो हम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, 5 वक्त की पढ़ते हैं, 6 वक्त की पढ़ते हैं, या हम पहली बात तो पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम अल्लाह से और हमारा कांटेक्ट उस नमाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम क्योंकि नमाज में अल्लाह खुद कहता है कि मैं अपने बंदे से बात करता हूँ, तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नमाज में रोना आता है कि नहीं आता है। तो ये सब क्यों सब कुछ होगा, तो जब हमें नमाज समझ में आएगी ना, हमारी लैंग्वेज में समझ में आएगी। हम तो अभी अरबी में रट्टाफिकेशन करते हैं, पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, हमें तजवीद भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, और हम बस एक ठुंगे मारने वाली बात है कि
5 वक्त के हमने बस अल्लाह के सामने सजदा कर लिया, है ना। तो जब हम ट्रांसलेशन इसका सीखेंगे, पढ़ेंगे और जब हमें पता चलेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारी हरकतें हमारे नमाज में होना शुरू हो जाएगी। हमें लगने लगेगा कि वाकई अल्लाह हमारे सामने है, वाकई अल्लाह हमसे गुफ्तगू कर रहा है, वाकई वो सुन रहा है। और जब सुन रहा है तो जैसे माँ के सामने बच्चा कोई चीज़ मनवाने के लिए कैसे रो रो के करता है, तो हमें अपने आप रोना भी आएगा। और रोना आएगा तो अल्लाह को बिल्कुल रहम आएगा, क्योंकि रहमान है। अल्लाह तो 70 माओं से भी ज़्यादा हमें प्यार करता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी दुआओं को कबूल न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी परेशानियों का हल न सॉल्व कर सके। वो उसके हाथ में तो सब कुछ है, शाहीन कदीर है, वो पूरे कंट्रोल है उसके हाथ में, है ना। रब्बुल अर्शिल अजीम है, पूरे अर्श का मालिक है, पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड, पूरे आलम, पूरे सब का मालिक है। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह को पहचानना पड़ेगा, अल्लाह है कौन, वो हस्ती कौन है, और उसका और हमारा रिश्ता क्या है। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं, ठीक है, दैट्स इट। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। वो रब है और हम अब्द हैं। रब मतलब वो हमारा मालिक है, हमारा पालनहार है, हमारी सारे काम, सारी चीज़ें वही हमें पूरी करके देता है। असबाब हम बनाते हैं बेशक दुनिया में, पर करने वाला वही है, और उसी की ही मर्जी चलेगी, वो किसी की मर्जी नहीं चलाता। तो वो कहता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहली ऑडियो में बताया था सबसे स्टार्टिंग में, कि अल्लाह ताला कहता है, ये आप समझ लो, एकदम दिमाग में अपने डाल दो, कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे, अगर जो तू चाहता है वो हो, तो पहले एक शर्त है, वाइसे वर्सा है, टिट फॉर टैट है, आप जो भी समझें। अल्लाह ये कह रहा है कि ए मेरे बंदे, तू जो भी चाहता है वो अगर दुनिया में हो, तो पहले मैं जो चाहता हूँ वो कर, बस सीधी सी बात है ना। तो हमें पहले वो जो चाहता है वो करेंगे, तो इंशाल्लाह जो हम चाहेंगे वो होगा। बस शर्त ये कि जायज़ होनी चाहिए। अब जैसे मसलन मैं किसी के लिए बद्दुआ ही कर दूं, या मैं ऐसी फालतू चीज़ ही मांग लूं, है ना, तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं दुआ में मांग रही हूँ कि या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे गाड़ी दे दे। अब मैं मांग रही हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब अल्लाह ने मेरी तकदीर पहले से ही, मेरे पैदा होने से लेके मरने तक पहले से ही लिख ली है। उसमें ये लिखा गया है, मान वैसे दुआ से चेंज होती है ऐसी बात नहीं, पर मैं अभी शॉर्ट में एक समझाने के मकसद से बता रही हूँ, कि वो गाड़ी लेने के बाद वो गाड़ी मेरे लिए, वो गाड़ी से मतलब मेरी ज़िंदगी में गाड़ी खैर नहीं है, गाड़ी मेरे लिए सही नहीं है। दूसरों के लिए हो सकती है, मेरे लिए सही नहीं है। गाड़ी वो लेते ही, ना अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी मेरे लिए फ़ायदा नहीं बनी ना, मेरे लिए अच्छी नहीं है ना। अब मुझे तो गाड़ी दिख रही है, पर अल्लाह को तो पूरी पिक्चर दिख रही है, मुझे तो एक पॉइंट दिख रहा है गाड़ी, पर अल्लाह को पूरी पिक्चर दिख रही है कि इसको वो गाड़ी मिलेगी, तो फिर ऐसा होगा, इसके लिए सही नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो 70 माओं से ज़्यादा उसको प्यार करता हूँ, मेरे बंदे को। तो उसके लिए अच्छा नहीं, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। और फिर मुझे बुरा लग रहा है, या अल्लाह मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, तो मुझे गाड़ी दे ही नहीं रहे अल्लाह, उसको दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, है ना। तो ये मैं एक एग्जांपल बता रही थी। जैसे मान लो एक और मेरे को याद आ गया कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, अपने लिए पार्टनर में किसी से पहले ही पसंद आ गया वो, है ना। तो वो दुआओं में मांग रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रही है, मेरे को वही चाहिए, लाइफ पार्टनर वही चाहिए, वही चाहिए। पर आगे जाके वो उसके लिए खैर नहीं है। मतलब वो लड़की अगर उसकी लाइफ में आती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या लड़ाई झगड़े या कुछ भी हो सकता है, या फिर वो लड़की के लिए वाइस वर्सा, है ना। तो कोई भी चीज़ ये भी आप ध्यान में रखिए कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो हमारे लिए खैर होती है। चलो खैर, ये तो आगे इंशाल्लाह अपने जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैं बहुत डिटेलिंग में आ गई, जबकि मेरे को सिर्फ लिस्ट बतानी थी। तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैं आप सिर्फ बड़ी बातें नहीं करूँगी, सिर्फ लिखा देती हूँ, है ना। ठीक है, चलो मैं लिखवा देती हूँ वापस। नंबर 1 से नंबर 9 तक हमारी जो ये है रोज़ के काम, डेली रूटीन, तो मैं फिर से बता देती हाँ, तो नंबर 1 डेली तस्बीह, नंबर 2 डेली एक अच्छा काम, नंबर 3 डेली एक हदीस और उस पर अमल, नंबर 4 डेली एक सूरह या एक आयत या 2-3 आयत और उसका तर्जुमा और उस पर अमल करना है, अल्लाह से वादा, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये सारा जो मैं बता रही हूँ लिखना है। और मैं आपको ऐसा हो तो फिर मैं आपको मैंने जो लिखा है उसकी स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ, तो आप उसको कॉपीराइट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर
फिर देखे मैंने फिर दोबारा बात करनी स्टार्ट कर दी। नंबर 4 पे हम आए थे, डेली एक सूरह या आयत और तर्जुमा और उस पर अमल का अल्लाह से वादा। 5 डेली एक बुरी आदत छोड़ने का अपने आप से वादा। 6 नंबर डेली एक दुआ, ठीक है, और उसका तर्जुमा और उस पे अमल। और 7 नंबर नमाज का तर्जुमा हम धीरे धीरे सीखेंगे, सना से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर 8 नंबर है दुआ होगी, मतलब इंशाल्लाह आपकी बहन दुआ करेगी तो आपको वो सुननी है बस, ठीक है। और फिर 9 नंबर है इस्तिखारा, ठीक है। अब ये जब इस्तिखारा जब रूटीन में जब आएगा तो मैं उसको इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगी कि इसकी अहमियत कितनी है। और इसकी अहमियत इतनी है कि इंशाल्लाह आप दुनिया में कोई भी दुनियावी काम, नेक काम नहीं, ठीक है ना, दुनियावी काम जो फ़र्ज इबादत है उन लोग उसके लिए नहीं कह रही, पर जो दुनियावी काम जो जैसे कि किसी से रिश्ता करना है अपने बच्चों का या खुद का, या फिर कोई गाड़ी लेनी है जैसा अभी मैंने बताया था, या कोई मकान लेना है, या फिर कोई बिजनेस करना है, या फिर किसी से मीटिंग करनी है, या फिर हमें सफ़र में कहीं जाना है, कोई भी वॉट एवर जो भी दुनिया के काम है उसमें इस्तिखारा का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे तो हमें तो देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने को कहा है, सिखाया है, वो हर चीज़ का इलाज दे के चले गए हैं। दिक्कत ये है कि हमने उनको माना है पर जाना नहीं है। माना है, मानते सब हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं, हम आशिक़े रसूल हैं, वॉट एवर फलाना फलाना फलाना, पर हम उनको जानते नहीं। जानते क्या नहीं है, मतलब उनके रूटीन्स क्या थे, वो क्या करते थे, वो जैसे करते थे वैसा हम करने लग जाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और कह रही थी कि ये सारी ऑडियो आपको लाजमन सुननी है, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और वैसे भी हर बंदी मोबाइल तो देखो हाथ में लेती है 24 घंटे में एक बार, है ना। और सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ये भी पक्का है, कंफर्म है, क्योंकि व्हाट्सअप के थ्रू हम जुड़े हैं। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी, कुछ ऑडियो शेयर करूँगी, कुछ वीडियो शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे जो भी करूँगी वो आपके सामने वैसे भी आ जाएगा, पर आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा ना। फिर ऐसा ना हो कि आधी बातें आप सुन रहे हैं, आधी स्किप हो रही है, आधी ज़ाया हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। करेंगे ये एक स्कूल की तरह आप समझें, या ये एक वर्कशॉप है ना। तो और देखिए इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और आपको ऐसा लगता है ना, मैं अभी नहीं कह रही, जैसे इंशाल्लाह मेरे को तो भरपूर उम्मीद है कि हर बंदे के साथ होगा। कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको फ़ायदा बहुत मतलब हो नहीं रहा होगा, बहुत लेट होगा, तो वो सोचेंगे यार कहाँ फंस गई, क्यों आई मैं इधर, ये वो। तो ये सब शैतानी वसवसे, मैं पहले से बता रही हूँ आपको। शैतानी वसवसों के चंगुल में कभी मत आना, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी है, पर मैं पहले से बता रही हूँ, क्योंकि जानकारी नहीं होती है। क्योंकि शैतान यही चाहता है, शैतान गुमराह लोगों को कभी वसवसे नहीं डालता, कभी नहीं डालता। वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करता, उसके पास प्रोडक्टिव वर्क है, वो शिद्दत से उसके पीछे लगा हुआ है। जैसे एक बंदा अपनी इबादत में अल्लाह को राज़ी करने में शैतान की एक क्वालिटी ले लेना कि शिद्दत से करना है, बस करना है, क़यामत तक करना है, ये भी एक क्वालिटी है उसमें, है ना। तो वो गुमराह कहने का मतलब है गुमराह लोगों को कभी वो वसवसे नहीं डालता, उसको पता है कि ये मेरी ग्रुप में है। तो वसवसे डालता है उसी के जो अल्लाह की राह में नया कदम रखता है, उसके साथ वसवसे होते हैं। जैसे वो ये कहेगा कि यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर ये कहेगा कि इससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, या ये भी कह सकता है कि इससे बेटर तुम ये करो तो जल्दी मिल जाएगा, हराम काम पे लगा देगा, ये सारी चीज़ें। तो हमें तो ऐसी दुनिया और आखिरत बनानी है जो अल्लाह को पसंद है ना। तो वसवसे डालेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो उससे घबराए नहीं, उसके हल भी हैं। और कोई ऐसा कुछ हो, कुछ भी होता है मामला, तो आप अपनी बहन समझ के प्लीज़, ग्रुप में नहीं, पर्सनली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।
تو اس کا حل بھی ہے اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، میں کہہ رہی ہوں نا، بار بار ایک ہی چیز کہہ رہی ہوں، ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بہت 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 بڑا احسان ہے، ہر چیز کا علاج ہمیں بتا کر گئے ہیں، پر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے نا۔ تو جب ہم والعصر والی سورہ کا ترجمہ پڑھیں گے تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ علم، نالج کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ نالج ہوگا تو ہم اس پہ عمل کریں گے، نالج ہوگا تو ہم اس چیز سے بچیں گے، نالج ہوگا تو ہم اس پہ لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ تو نالج ہونا مین مقصد ہے، نالج نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہی نالج ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ وہ نالج آپ کو اب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو وسوسوں سے نہ گھبرائیں، یہ مجھے یاد آ گیا اس لیے میں نے ابھی بتایا۔ اور ہاں، میں کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی پری پلاننگ نہیں ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو جو مجھے تجربہ ہوا ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آسانی ہو تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی آپ بھی کوشش کرو، آگے سے آگے بتاؤ۔ نفع بخش علم اگر آپ کو مل گیا ہے تو وہ آگے آپ لوگوں کو بھی نفع پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری مخلوق کا سوچو گے، تو میں تو آپ سب کا بھلا سوچنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس میں میرا ایک لالچ بھی ہے، سچ بتاؤں تو انشاءاللہ کسی کو فائدہ ہوگا وہ میرے لیے دعا کریں گے، بالکل کریں گے، ہے نا۔ اور کسی کو جیسے مال میں فائدہ ہوگا تو دعا کریں گے، کسی کو ایمان میں فائدہ ہوگا تو وہ دعا کرے نہ کرے، میں صدقہ جاریہ میں بن جاؤں گی، میرے اعمال نامے میں وہ نیکیاں ایڈ ہوتی رہے گی۔ ایک کرے گا تو اس کی، دو کرے گا تو پھر دو ہوگی، تین ہوگی، چار ہوگی، ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے یہ۔ اور پھر جیسا الحمدللہ آپ کو کسی نے مجھے بتایا، میں نے اس پہ عمل کیا، فائدہ اٹھایا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اور آپ عمل کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، پھر آپ دو لوگوں کو اور بتائیں گے کہ میں نے یہ نالج مجھے ملا اور میں نے عمل کیا، مجھے یہ فائدہ ہوا، تو آپ بھی کرو۔ تو یہ سارا ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، کرتے نا ملٹی لیول مارکیٹنگ، وہ بزنس چلتا ہے جو، تو یہ بھی نیکیوں کا ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے۔ تو لوٹ لو، ابھی موقع ہے، جب تک ہم زندہ ہیں لوٹ لو، نیکیوں کو لوٹ لو۔ اور یہ نیکیاں لوٹنے لگیں گے نا تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ تو ہماری دنیا سنور جائیں گی، ہے نا۔ اور دیکھیں ایک بات اور بتا دوں میں کہ جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو، ایک ٹرین ہے، ایک سفر میں ہم جا رہے ہیں، ٹرین ہے، جیسے مان لو میں اپنا ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں بیکانیر سے احمد آباد، مطلب میرے سسرال سے پیڑ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب 14 گھنٹے کا سفر ہے، اور اس 14 گھنٹے میں مجھے نہیں پتا کہ اس ٹرین میں مجھے کس کس سے مطلب میری ملاقات ہوئے گی۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، کسی کا مس بیہیو بھی ہوگا میرے ساتھ اس سفر میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات ہی نہیں کریں گے، کوئی مطلب نہیں ہے، اپنی مستی میں مست ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انوالو ہوں گے، مطلب بات چیت شروع کریں گے، انٹروڈکشن دیں گے، انٹروڈکشن لیں گے، اور کھانا وانا بھی آفر کر سکتے ہیں، اور اپن کھانا آفر کریں گے تو کھا بھی لیں گے، ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے بنا وجہ، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں پر دیکھیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہماری اتنی بہترین، اتنی اچھی دوستی ہو جائے گی کہ ہم ایک دوسرے کے کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر لیں گے آپس میں، اور وہ رشتہ کافی ٹائم تک چلتا رہے گا موبائل کے تھرو۔ تو ابھی ہم جو ہے نا، یہ بتانے کا مقصد ہے، اور پھر جب میں میری منزل تک پہنچ جاؤں گی تو میرے دماغ میں وہ میموری رہے گی کہ دیکھو ایک بندہ ایسا تھا جس نے مجھے پتہ نہیں کیوں گھر گھر کے دیکھ رہی تھی، وہ یہ دیکھ رہا تھا، میں نے تو اس کا کچھ کیا ہی نہیں، ہے نا۔ یہ دماغ میں آتا ہے نا، سب نے محسوس کیا ہوگا یہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میں ممی کو جا کر بتاؤں گی، اور ممی دیکھو شاندار
لیڈیز تھی، شاندار فیملی تھی، بہت مزہ آیا میرا تو سفر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ کیسے سفر ختم ہو گیا۔ میں تو اکیلی جا رہی تھی، سوچا بور ہوں گی، ڈر بھی لگ رہا تھا، سب کچھ ہے، پر الحمدللہ مجھے تو سیفٹی محسوس ہوئی۔ اور وہ لیڈیز کے ہسبینڈ نے مجھے اترنے بھی نہیں دیا ٹرین میں، چائے بھی لا کے دے دی، ناشتہ بھی لا کے دے دیا، میری پریشانی یوں ہی مٹ گئی۔ تو کچھ لوگ اتنے اچھے نائس بندے بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ٹھیک ہے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ انہوں نے غلط نظر سے دیکھا، نہ انہوں نے کچھ برا کہا، نہ برا سوچا، اور نہ انہوں نے اچھا کہا اچھا سوچا، نیوٹرل ہے نا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ اب ہم اسی ٹرین میں سوار ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ وہ ٹرین الگ تھی، بیکانیر سے احمد آباد کی تھی۔ یہ ٹرین ہے مسلمہ سے لے کے مومنہ تک کی ٹرین ہے، یہ کیا ہے، مسلمہ سے لے کے مومنہ تک کی ٹرین ہے۔ اس میں ہمارے ساتھی بھی ہیں 26 الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ساتھی جلدی نیچے ٹرین سے اتر جائے، باہر نکل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے اس ٹرین میں سفر ہو کہ انشاءاللہ قیامت تک مرتے دم تک ہمارا ساتھ ہو، اور ہمیں خوب ایک دوسرے کو فائدہ ملے ایک دوسرے کا، ہے نا۔ اور ہو سکتا ہے کچھ ایسا ساتھی مطلب سفر میں ہو کہ ان کو اچھا نہ لگے، کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ہی میں سٹوری بتا رہی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، دیکھو ہو کچھ بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے نا دل کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، پریشانیوں کا حل، سکون، اچھا برا، مال دولت، دنیا کی ساری آرائشیں، رزق، بھوک مری، مصیبتیں، پریشانیاں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا آگے کیا ہوگا، بس میں ایک کوشش کر رہی ہوں، یہ مجھے پتا ہے، پر مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرین میں بھی کب تک سوار رہوں گی، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ نیت تو میری یہ ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس ٹرین میں بیٹھی رہوں، اور اللہ رب العزت میرے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اس چیز کا، کسی کو نقصان نہ ہو، نیت تو یہی ہے، اور انشاءاللہ نیتوں پہ ہی سارے معاملات ہیں، پر مجھے پھر بھی نہیں پتا ہے نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، کہاں تک ہمارا ساتھ رہتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے، مین تو میرا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، بہت فائدہ ہو، اور اتنا فائدہ ہو کہ آپ مجبور ہو جائیں اور لوگوں کو بھی بتانے کے لیے کہ یار دیکھو میری تبدیلی آئی ہے زندگی میں، آپ بھی کرو۔ پر آپ کو ہر کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت کرنی ہے نا، 2 لوگوں کو ایٹ لیسٹ اگر ہو تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلو تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، جمعہ ہے تو آج کی تسبیح میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آج صرف تسبیح کا کریں کیونکہ جمعہ ہے، سب بیزی رہتا ہے، تو جمعے کو سبھی کو پتہ ہے، پھر بھی میں بتا دیتی ہوں۔ آج آپ کو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، اس کی کم سے کم 1 تسبیح، ویسے تو یہ معمول بنا لو کہ جمعے کے دن ہماری زبان، باتھ روم جاتے ہیں نا، لیٹرین جاتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں اور اس سے باہر نکلتے ہیں، اس کے علاوہ، کیونکہ دیکھو زبان سے تو ہم کام کرتے نہیں ہیں، تو ہماری زبان درود ابراہیم سے تر رہے، تر، ٹھیک ہے۔ تو 1 تسبیح تو درود ابراہیم کی آپ کو پڑھنی ہے، جتنی آپ پڑھ سکو۔ ہاں میں یہ سب کو یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے تسبیح کتنی پڑھی ہے نا، وہ تو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا تاکہ حوصلہ افزائی ہو نا، کوئی 1 پڑھ رہا ہے تو 2 پہ آ جائے گا، 3 پہ آ جائے گا، کمپٹیشن کریں گے تبھی مزہ آئے گا۔ تو درود ابراہیم آپ کو پڑھنی ہے، اور میں اس کی اسکرین شاٹ ڈال دیتی ہوں، اور جمعہ ہے اس لیے درود ابراہیم لے لیتے ہیں، اور ایک توبہ استغفر اللہ کی تسبیح، اور آج ہے نا جوہر کی نماز کے بعد 100 بار اللہم صلی علی محمد،
सिर्फ ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये आपको 100 बार पढ़नी है जौहर के बाद। जो भी कर्जे में है ना, सबकी देखो अलग अलग परेशानियां होगी ना, मैं पूछूंगी और मैं बस जनरली बताऊंगी तो सबको अपना अपना पता होगा। तो जो भी कर्जे में है, खास ये उनके लिए है, जौहर में 100 बार जौहर की नमाज पढ़ने के बाद उठे नहीं और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, बस ये पढ़नी है आपको। ये पढ़ने के बाद सजदे में जाएं, रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह का वादा है, पहाड़ से भी ज्यादा कर्जा होगा ना। पहाड़ तो कितना बड़ा होता है, हम तो कुछ पहाड़ के सभी गए होंगे, पहाड़ देखे होंगे, कितने बड़े बड़े ह्यूज, ऐसा लगता है जैसे आसमान को टच कर रहे हैं। पहाड़ से भी ज्यादा कर्जा होगा, वो भी उतर जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो मैं बता रही हूँ ना जौहर वाला, ये देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ वो तो खैर लिखा ही है, सबको पता है। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे अरे यार ये रिहाना क्या बकवास कर रही है, जो बता रही है हम तो ऑलरेडी करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो हमको पता है ना। पर नहीं, अभी आप खाली दिमाग से, सिर्फ एक नहीं, एक छोटा बच्चा होता है और एक टीचर होती है जो बोलती है वो करता रहता है। बस आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, एक बार ज़्यादा दिमाग न चलाएं, बिल्कुल दिमाग में मत चलाएं, बस जो मैं बोल रही हूँ करें। और अगर करते हैं तो अच्छी बात है और उसको शिद्दत से करिए, ठीक है ना, कि चलो करना है, ठीक है ना। तो आज ये दो चीज़ मैं बता रही हूँ। और मैंने क्या बताया, एक तो दुरूद इब्राहिम और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और ये जोहर की नमाज के बाद ये। और हाँ, एक चीज़ और, जो कर्जे में अगर मुब्तला है तो उनके लिए एक तस्बीह और है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, उसके बाद 7 बार, आप नोट डाउन कर ले, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज रही हूँ, 7 बार ये पढ़नी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। एक तो ये 7 बार पढ़नी है, और एक अलम नशरा लका सदरक दुआ है ना, याद हो तो ठीक है, वरना कुरान में से देख के आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों 7 7 बार पढ़नी है, ठीक है। तो अब ये मैंने ऑडियो में तो बोल दिया है, अब मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं जो नए ऐड करे हैं ना, जैसे मैंने सुबह सारे मैसेजेस भेज दिए थे क्या पढ़ना है क्या नहीं, ऑडियो मैसेज और स्क्रीनशॉट और सब वगैरह वगैरह। तो नए लोगों से पूछ रही थी, ये जो 4 5 जुड़े हैं ना, जैसे रिजवाना अनीस है, करिश्मा रायपुर, जाकिर भाई नाजो, जाकिर भाई की लड़की रायपुर, स्वीटी। तो ये सब प्लीज़ मुझे एक बार मेंशन कर देगा कोई भी एक, कि ये उनको भी मैसेज दिखाई दे रहा है, वरना मैं री फॉरवर्ड कर देती हूँ उनको, ठीक है। तो क्योंकि आज फर्स्ट डे है और मैंने आज का वर्क डाल दिया ऑलरेडी। माशा अल्लाह वबारक अल्लाह फ़ी। पर आप लोगों को ऐसे नहीं बताना है, मैं इंशाल्लाह, ये मेरी गलती है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। एक नोटबुक और पेन तो आपने खैर ले ही ली होगी, मेरे ऑडियो में मैंने जैसे बताया था। तो आपको डेली ये एक वर्क समझ के और लिख कर बताना है, और अपना नाम ऊपर होना चाहिए। तो चलो, मैं आपको डेमो, मैं खुद एक वीडियो थोड़ा छोटा सा करके बता देती हूँ। मैं तो वीडियो बना के बताऊंगी, पर आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है ना, पेज पे पूरा लिख लेना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। इंशाल्लाह ऐसे रूटीन में रहेंगे तो जैसे कैसे स्कूल में बच्चा जाता है और धीरे धीरे सीखता है, हमें वैसे ही इंशाल्लाह हमारे रूटीन में, डेली रूटीन में आएगा ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह फिर हम कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, डन। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको ये सारे कंटेंट मिल गए हैं ना, तो मैं दोबारा ना भेजूँ ना आप लोगों को। ओके, राइट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह बहन कोई भी पढ़ सकते हैं, पर जो मैंने ये दी है ना, ये सैयदुल इस्तगफार है, मतलब ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो डेली रूटीन में हमें पढ़नी है। और बाकी जो ये तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की बोली है, वो कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, इंशाल्लाह जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा तो उसमें अशरे के हिसाब से अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह मैं खुद भेज दूंगी, वैसे आप सबको पता है, पर ठीक है, मैं भेज दूंगी। इंशाल्लाह अपन शेड्यूल और रूटीन के हिसाब से चलेंगे, ओके। हाँ जी, तो फाइनली ये तय हुआ है कि अपन ऐसा ही करेंगे कि जो मैंने अभी बोला ना, कि पिक खींच के और आप भेजना ग्रुप में, तो ग्रुप में नहीं भेजना, आप मुझे पर्सनली भेज देना, ठीक है। और अगर किसी को मुझे पर्सनली भी भेजने की इच्छा नहीं है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बनाना ज़रूर। नहीं बनाओगे, देखो अल्लाह ताला को कंटिन्यूअस रूटीन पसंद है, अल्लाह ताला को ऐसे अमल पसंद है, चाहे छोटे छोटे हो पर डेली हो।
डेली बेस पर हो। ऐसा नहीं कि एक दिन हम लगातार बैठ गए या एक महीना रमज़ान के महीने में, जैसे अक्सर लोग करते हैं कि रमज़ान के महीने में खूब इबादत करते हैं, खूब नेकियां करते हैं, खूब सारी चीज़ें सब रमज़ान में करते हैं और ईद आई और सब भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे। और देखिए डेली करेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी आदत में आ जाएगा, और जो है कि हम बस उसको भूलेंगे नहीं, करते रहेंगे और उसके हमारे लाइफ में बदलाव आते रहेंगे, परेशानियां कम होती रहेगी और सुकून बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप खुद फील करेंगे। पर इसको कम से कम 40 दिन करना पड़ेगा। 40 दिन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों के मैसेज मेरे पास आ जाएंगे कि काफ़ी चीज़ें बदलने लगी है। ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। मैंने दुआ भेजी है। ये दुआ असर और मगरिब के बीच में टाइम निकाल के प्लीज़ अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर सुने और आमीन कहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबका जो परेशानी का मामला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म होने लगेगा। अभी थोड़ी मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, तो बीच बीच में खांसी हो जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह धीरे धीरे खांसी चली जाएगी। ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका व रहमन इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मलिक, या सलाम, या रज़्ज़ाक, या सत्तार, या वहाब, या कहार, या सत्तीर, या अली, या मुताला, या आला, या जमील, या हबीब, या रशीद, या मजीद, या हकीम, या हफीज़, या जल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, तेरे रहमान होने का वास्ता। या अल्लाह, या अल्लाह, आज जितनी भी बहनें बेटियां जो भी इस ग्रुप में शामिल हुई हैं, या अल्लाह आज मैं रो रो कर तुझसे दुआ करती। या अल्लाह इन सब की दुआएं कबूल कर ले। या अल्लाह आज ऐसा वक्त चल रहा है, हर कोई परेशानी में है, कोई कर्जे में मुब्तला है। किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी। या अल्लाह तू सहीन कदीर है। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, हम मक्कार हैं, हम चोर हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं। पर या अल्लाह हम ये भी जानते हैं कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू कहार है, तू वहाब है, तू रज़्ज़ाक है, तू सत्तार है। रिस्क देने वाला तू है, हमें पालने वाला तू है, हमारा रब तू है, हमारा राज़िक तू है, हमारा खालिक तू है, हमें बनाने वाला तू है, हमारे माँ बाप को पैदा करने वाला तू है, हमें पैदा करने वाला तू है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उन सब की उम्मतों को पैदा करने वाला, उन सब को मौत देने वाला, क़यामत के दिन इकट्ठा करने वाला तू ही है। या अल्लाह तू ही है। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, पर उससे भी बड़ा तेरा दिल है। या अल्लाह तेरी रहमत है, तेरा तेरा रहमान होना काफ़ी है, हमें तो तेरा रहमान होना काफ़ी है। तो खुद कहता है या अल्लाह मैं रहमान हूँ और मैंने अपने गज़ब को, गुस्से को अपनी रहमत के आगे ख़त्म कर दिया है।
या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, या अल्लाह तुझे तेरे अस्सीर होने के वास्ता, गुनाहों को मिटाने वाला, नेकियों में बदलने वाला। या अल्लाह हमें पता है हम गुनहगार हैं, हम सब जानते हैं हम गुनहगार हैं, और हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से हम तेरे कलाम को, तेरे कुरान को ठुकराते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तेरे कुरान की आयतों को हम सुनते हैं, समझते हैं, पर उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए तू नाराज़ है ना। या अल्लाह हमारे अमालों की कोताहियों की वजह से तेरी नाराज़गी हो रही है ना। तू अजाब देना चाहता है, पर तुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा था ना। या अल्लाह, पर हम माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह दिल से तौबा करते हैं। या अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को मिटा कर या अल्लाह सारी नेकियों में तब्दील कर दे। या अल्लाह हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह दोबारा तौबा, दोबारा तौबा, दोबारा तौबा। या अल्लाह वादा करते हैं हम दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह हमें रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलमुमिनाति वलमुमिनीन रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लिसानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐन हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या अल्लाह आज ये जितनी भी बहन बेटियां हैं, ये सब अपनी परेशानियों का हल ढूंढने ही तो आई है। इनको क्या वजह पड़ी है कि ये ग्रुप में शामिल होती, पर या अल्लाह हर कोई परेशान है, सबकी परेशानियां अलग अलग है, सबकी परेशानियां कोई, किसी की परेशानी हल्की है, किसी की भारी है। या अल्लाह कोई तो तुझे सिर्फ राज़ी करने के लिए है बेटा। या अल्लाह राज़ी हो जा। या अल्लाह हमें ऐसे अमाल सिखा दे जो तुझे राज़ी करे, और ऐसे अमाल कभी मत सिखाना जो तुझे नाराज़ कर दे। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े जितने भी गुनाह हमारे से हो गए हैं, जो गुनाह हमने जानबूझकर किए, जो अनजाने में हुए हैं, जो गुनाह हमने छिपे में किए हैं, जो गुनाह हमने खुलेआम किए हैं, हमसे किसी का दिल आज़ारी हो गई है, किसी का दिल दुख गया है, या अल्लाह हम सबकी माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह फिरका वारियत से बचा ले। या अल्लाह या आपसी हसद जलन से बचा ले। या अल्लाह भूख की ना तकब्बुर से बचा ले। या अल्लाह हम बचना चाहते हैं, पर हमारे में हिम्मत नहीं है, शैतानी वसवसे आ जाते हैं, बार 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 तौबा करते हैं, बार बार शैतान भड़का देता है। या अल्लाह हमें पता है कब्र का अजाब होगा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा ले। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह जहन्नम की आग से हमेशा हमेशा के लिए हमें बचा दे। या अल्लाह जी, या अल्लाह सिराते मुस्तकीम हमें बता दे, सीधा रास्ता बता दे। या अल्लाह जिसकी जो भी परेशानी है, अभी जो भी बहन बेटियां बैठी है कर्जे वाली है, जिनका कर्जा है उनको कर्जे से निजात दे दे, जिसे घर चाहिए उसे घर दे दे, जिसे गाड़ी चाहिए उसे गाड़ी दे दे। या अल्लाह जिसे आखिरत का मसला है उसके आखिरत के मसले में उसको सुकून ही दे दे। या अल्लाह सब को रिस्क अता फरमा, रिस्क में कुशादगी कर दे, बरकत दे दे, बच्चों के मसले हल कर दे, सब की दुआएं कबूल कर दे। या अल्लाह सब की दुआएं कबूल कर दे। या अल्लाह सब की दुआएं कबूल कर दे। या अल्लाह बस तू राजी हो जा। या अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जाएगा सारे मसले हल है। तू राजी हो जा या अल्लाह, तू राजी हो जा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने वाला बना दे, सीधी और सच्ची राह दिखा दे। या अल्लाह हमें हिदायत दे दे, सच्ची पक्की हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारे दिल बदल दे। या अल्लाह तू ही कहता है दो उंगलियों के बीच में तुम्हारा दिल है, तुझे तो सिर्फ उंगलियां घुमानी है। या अल्लाह तू तो अर्श अजीम का तू मालिक है, क़यामत के दिन का तू मालिक है। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह मैं सभी की मसला या अल्लाह दुआ कबूल कर।
یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا، جو بھی گناہ آڑے آ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ان گناہوں کو دور کر دے، اور ہمارے ایسے اعمال ایسے اخلاق کر دے کہ کبھی تو ناراضی نہ ہو۔ یا اللہ ہماری اقوال افعال اعمال تینوں میں سکونیت عطا فرما، تینوں میں حسن پیدا کر دے۔ یا اللہ قبر کا عذاب بہت گندا عذاب ہے، یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ ہم ایک مچھر کے کاٹنے سے اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں تو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب ہوں گے۔ یا اللہ، یا اللہ کمرے میں اندھیرے میں ہم اکیلے سو نہیں سکتے، قبر میں ہمیں اکیلے سونا پڑے گا۔ یا اللہ بہت ڈر لگتا ہے اس قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، ہم سب کو بچا لے یا اللہ۔ اور یا اللہ اس دنیا میں بھی ہماری پریشانیوں کا حال ہمیں بتا دے، یا اللہ ہماری زندگی سنوار دے، یا اللہ کلام الہی سے محبت کرنا سکھا دے، یا اللہ قرآن پاک کا ہمیں صحیح صحیح علم نصیب عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من عذاب الفتنة المحیا والممات، من عذاب الفتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ ساری بہن بیٹیوں کی، سب کی، محمد مسلمہ جتنے بھی امتی ہیں، فلسطین میں جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جن کے بنا وجہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو بھوکے رکھا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو صبر عطا کر، ان کو ہمت دے، اور ان کو غیب غیب سے رحمت نازل کر دے۔ یا اللہ تو چڑیوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، تو کیا نہیں کر سکتا یا اللہ، تو کیا نہیں کر سکتا، پر تو ناراض ہے، تجھے راضی کرنا ہوگا، ہمیں پتہ ہے تجھے راضی کرنا ہوگا۔ جب تو راضی ہو گیا تو ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، اور دوستوں کا دل نہیں دکھایا کرتے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں بھی ان ولیوں میں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم تیرے غلام ہیں، پر ہم غلامی جیسی کرنی چاہیے ویسا نہیں کرتے، تیرا حق ادا نہیں کرتے، اسی لیے تو ناراض ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ سب لوگ بہت اچھا کر رہے ہو، اور جو لوگ رہ گئے ہو مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ٹائم نکال کر جلد سے جلد کریں۔ بس ریکویسٹ یہ ہے کہ 9 تاریخ کیلنڈر میں آنے سے پہلے پہلے آپ کا یہ سارے اعمال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج تو ویسے کچھ بھی نہیں ہے، آج تو جمعہ تھا، تو میں نے صرف فوری طور پہ انٹروڈکشن وے میں کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو 10 ٹائپ کے کام کرائٹیریا لکھے تھے وہ پورے نمبر وائز ہی انشاءاللہ ہوں گے، تو آپ کو جو بھی شارٹ کوئی ویڈیو آ جائے گی، کوئی آڈیو آ جائے گی، کوئی کنٹینٹ آ جائے گا، تو وہ سب چیزوں پہ انشاءاللہ عمل کرنی ہے۔ اور ایک چیز اور بتا رہی تھی کہ آپ سبھی لوگوں کو ایک اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز کو سکپ نہیں کرنا ہے، جیسے ایک آڈیو سن لی دوسری نہیں، کیونکہ میں یہ جو ورک شاپ ہے وہ میں ڈیلی روٹین کا باقاعدہ سارا شیڈول وغیرہ سب کچھ بنا کے اور 10 کام کے حساب سے بھیجوں گی، تو پھر ایک دو رہ گیا تو آپ کے 10 کام پورے نہیں ہونے والے، ہے نا۔ تو ایک تو وہ چیز، اور کل انشاءاللہ ٹاپک بھی جیسے ہم کچھ نہ کچھ ٹاپک شیئر کریں گے الگ الگ قرآن کے حوالے سے، تو وہ ٹاپک بھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے لحاظ سے آپ کو بہت کچھ چیزیں پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو سننا سارا ہے نا، سکپ نہیں کرنا ہے، سکپ مطلب چھوڑنا نہیں ہے، اور سبھی کو اپنا اپنا نام دینا ہے، نام دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں صرف یہ جیسے لکھا ہے ڈن ڈن وہ بھی چلے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری اپنی ڈیلی روٹین اذکار نماز اور وہ سب بھیجیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، پر مجھے پرسنل بھیجیں گے، پر اور ٹرسٹ کریں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ہے نا، کہیں آگے بات نہیں جائے گی۔ اور اگر پھر بھی نہیں بھیجنی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، آپ ڈن ہی لکھ دیجیے، ٹھیک ہے نا، پر وہ بنانا ضرور ہے نا، جو میں نے نماز کا اور وہ چارٹ بولا تھا بنانا ضرور ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔
तभी ये सारी चीज़ें असर करेगी, सारी चीज़ें मैटर करती है एक साथ। सिर्फ तस्बीह लेके बैठेंगे तो तस्बीह लेके तो आप अपन बैठे ही हैं। जब से पैदा हुए तब से ही अपन ये काम कर रहे हैं ना, तो आप समझिए बात को। तो जो भी आपको 40 दिन देखो, एक बार मैं जो कह रही हूँ फॉलो करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह देखना असरात आप खुद देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी और ऐड ना करवाए, अभी लास्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब प्लीज़ नेक्स्ट ये वर्कशॉप चलता रहेगा इंशाल्लाह मरते दम तक। तो अगली बार के लिए आप लिस्ट बना लें, ठीक है ना। और प्लीज़ ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट ना करें, फिर मैं मना नहीं कर पाती हूँ, और फिर मुझे बहुत दिक्कतें हो जाती है, शेड्यूल बहुत हौच पौच हो जाता है। तो आप मेरी तकलीफ़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि ये बस पहली बार और आखिरी बार है, इंशाल्लाह होता रहेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए लिस्ट बना लें, जिसको भी ऐड करवाना है अपनी अपनी नोटबुक में लिस्ट करवा लें। जब ये वर्कशॉप ख़त्म होगा तब इंशाल्लाह फिर से ये वर्कशॉप स्टार्ट करने की हम करेंगे। तब आप उसमें ऐड होना चाहें और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर प्लीज़ अब कोई ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती, पर मैं फिर परेशान होती हूँ, है ना। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन में काम करेंगे तो ही सबसे सबके लिए बेहतर रहेगा। ओके, तो बुरा मत मानिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि ये वर्कशॉप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो फिर 1.5-2 महीने के बाद जब फिर से आप लोगों की डिमांड होगी तो एक बार फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। और एक बात और, कि जो अभी नए नए ऐड हुए हैं, तो कल का सारा शेड्यूल उनका मिस हो गया, और कोई भी चीज़ मिस होगी तो आगे जाके पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं ऐड नहीं करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मकसद ये है। हम पहले दिन से और पहले स्टार्टिंग से ही हम हर चीज़ सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और अमल करेंगे, तो ही ये असर होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिर 2 दिन बाद जुड़ रहे हो, 3 दिन बाद जुड़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो असर नहीं होगा, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, हर चीज़ की हिकमत होती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब जो आज मैंने जोड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आपको जुड़वाया है उनसे आप कंटेंट ले लीजिए, और जो वर्क मैंने दिया है वो करना है आपको भी। स्क्रीनशॉट आपको भी भेजना है, या डन लिख के लिखना है कि भई आज का चलो हमने शेड्यूल कर लिया। आपको आज भारी रहेगा, क्योंकि आज को आपको कल का भी करना पड़ेगा और आज का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं भेज सकती, आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबको पता है किसने जोड़ा है क्या है, तो उनसे आप ले लीजिए। और जो जिन्होंने जोड़ा है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा कंटेंट उनको दें और उनको समझाएं कि ये है। दुआ भी सुननी है, अब दुआ आज की भी अलग होगी, तो दुआ आपको वो भी सुननी है, ये भी सुननी है। तो आप लोगों के भी लिए एक्चुअली तकलीफ वाला काम हो जाता है ना। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैं बार-बार बोल के किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर बस ये कि आप डिसिप्लिन जो वर्ड है उसको समझने की कोशिश करिए। आगे जाके आपको खुद को पता चलेगा कि हमारा इस्लाम डिसिप्लिन के बारे में क्या कहता है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो मेरा काम मैंने आसान कर दिया कि कंटेंट आप खुद ही ले लीजिए। तो मैं आज का इंशाल्लाह अभी थोड़े देर में ही शेयर कर रही हूँ, जो हमारे 10 काम थे उसके हिसाब से, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन का, कल का सारा शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है। माशाअल्लाह सब ने अच्छे जुनून से काम किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और जिन्होंने मैसेज नहीं किया है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मैसेज करते रहें, ताकि मुझे पता चले। प्राइवेटली भी कर सकते हैं, और अगर आप अस्कार कर रहे हैं तो एक बार भी बता सकते हैं कि नहीं हम फॉलो करेंगे, तो मुझे पता चले एटलीस्ट। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए भी हैं पर्सनली, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, किसी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, ये वो, कोई पीरियड्स में है, तो कई चीज़ें हैं। तो मैं पीरियड्स वालों को तो बता दूं कि ज़िक्र कर सकते हैं, ज़ुबान हमारी पाक होती है तो ज़िक्र तो कर ही सकते हैं। नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते, पर ज़िक्र तो हम ज़ुबान से करते हैं। और छोटे मोटे ज़िक्र है, जैसे तौबा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 100 बार,
और 100 बार नहीं, पीरियड्स में है, हमें नमाज वमाज और सब के काम से हम फारिग होते हैं, तो घर का काम करते हुए, घर का काम करने के बाद भी हम तौबा अस्तगफिरुल्लाह तो कसरत से पढ़ ही सकते हैं। तो ये हमें और ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि तौबा अस्तगफिरुल्लाह से बड़ा को कुछ नहीं है अमल में। जितने गुनाह हम बख्शवाएंगे हमारे, तभी हमारी दुआओं को कबूल होती है, ठीक है। और तौबा ऐसी होनी चाहिए कि आगे जो गुनाह हम कर रहे हैं या कर चुके हैं वो आगे न करने की नीयत भी हो, ठीक है, और उससे इंशाल्लाह बचते रहने की कोशिश भी हो। तो पीरियड्स वालों का तो मसला ख़त्म हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। अब जो दूसरे हैं कि दुनियावी काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है या जो भी है, तो वो लोग भी ज़ुबान से तो तस्बीह सारे ही कर सकते हैं। देखिए, तस्बीह करने का मसला तो मुझे लगता है किसी को होना ही नहीं चाहिए। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं उस पे चलो कोई बात नहीं, जब भी जो फुर्सत में आएगा तब वो करे, क्योंकि इस चीज़ पे जो अमल करेगा वो वैसे भी फुर्सत पे रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह उसको टाइम भी खूब दे देगा और पैसा भी खूब दे देगा। जब दोनों चीज़ें आ जाएगी तो फिर टाइम ही टाइम है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बिज़ी इसीलिए है ना कि उनको अच्छी दुनिया चाहिए, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उनके बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट होने चाहिए, उनको मतलब कुल मिला के एट द पॉइंट पैसा ही होता है। किसी को कर्जा उतारना है तो पैसा चाहिए, किसी को ज़रूरत पूरी करनी है तो पैसा चाहिए, किसी को शादी करनी है बच्चों की तो पैसा चाहिए, है ना। तो रिस्क की बरसात कर देगा अल्लाह ताला, तो फिर क्या होगा, फिर हमें कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐप गैप से भी मिलता रहेगा, तो हमारा टाइम ही टाइम है। तो वो टाइम फिर हम कहाँ लगाएंगे, अल्लाह के और ज़िक्र में लगाएंगे। जितना ज़िक्र करेंगे, जितना अल्लाह को राज़ी करेंगे, इतनी अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन कर देगा, और इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करने का हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हमें तैयारी कुछ ना कुछ तो टाइम निकाल के करनी ही पड़ेगी। जब हम 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते हमारे 24 घंटों में से, इतने हम बिज़ी हैं, तो फिर हमारी दुनिया और आखिरत कैसे संवर सकती है, आप बताइए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हार्श बोल रही हूँ, पर प्लीज़ इस बात को समझिए। तो शुरुआत मैंने इसलिए करी है ऐसे बोलकर, और फिर अब चलो हम अभी शेड्यूल में स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 से लेके 10 तक मैं डिटेल वाइज दूंगी, छोटी छोटी ऑडियो होगी, और इंशाल्लाह वीडियो भी भेजूंगी। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, मीन्स छोड़नी नहीं है, सारी की सारी चीज़ें देखनी भी है, सुननी भी है, लिखनी भी है, और ज़ेरोक्स जिसकी मैं बोलूँगी उसकी निकाल के एक फ़ाइल भी बनानी है, फ़ोल्डर बनानी है, ज़ेरोक्स बनानी है, ताकि आप ये खुद भी अपने लिए सीख रहे हैं, फिर आगे जाके आपको लगेगा अरे काश मैंने ये सब सेव कर लिया होता, तो मैं अब 2 लोगों को मैं भी बताती, मेरी सगी बहन को बताती, माँ को बताती, बेटी को बताती। दो कोई इंसान अपने माँ बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए तो इतना करता ही है, और नहीं करता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उनकी तैयारी के लिए मैं आपको सेव करने के लिए कह रही हूँ, ताकि फिर आप कल को अफसोस ना करो, ठीक है। तो अपन को सारा काम एक साथ करना है, छोटा छोटा काम है पर डिफरेंट वे से, और सारा कंप्लीट वर्क करना है, ठीक है। इसीलिए इसको वर्कशॉप कहा गया है। उम्मीद है आपसे आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज रही हूँ अब ऑडियो। हमारी जो पहला काम है, जो 10 काम मैंने बताए थे, उसमें पहला जो काम है वो तस्बीह का था, और मैंने तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह भेज दी है। तो आज एक तस्बीह ऐड की है मैंने। तो आपको ये चारों चीज़ें, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़नी है, ज़्यादा आप जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़ुबान से काम करना है ना, आप इस बात को समझिए। आप खाना बना रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगता होगा, तो ज़ुबान तो फ्री है, तो हम उस ज़ुबान से बातें ना करें। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, ये बातें ना करें उससे अल्लाह ने एक बात याद दिलाई। एक्चुअली क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है, हमें टीचिंग्स दी है, सिखाया है कि दुनिया का हर इल्म पाने की कोशिश करो, है ना। हर इल्म पा तो नहीं सकते हम, इल्म मतलब नॉलेज, तो हर चीज़ का नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हमें हिकमत आएगी। हिकमत मतलब जो भी इल्म हम सीखते हैं, फिर उसको अमल कब, कहाँ, कैसे, कितना करना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, ठीक है। अब डॉक्टरी जब पढ़ाते हैं, एमबीबीएस करवाते हैं, तब सारी टीचिंग सिखाते हैं, तब उसमें नोबल जो मोरल वैल्यूज़ कहते हैं, मतलब उसमें सिखाया जाता है कि पेशेंट से कैसे ट्रीट किया जाए, या फिर ये भी बताया जाता है कि सिगरेट और तंबाकू और इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो एक डॉक्टर को सब कुछ पता है, मतलब अक्ल तो सबको अल्लाह ने दी है, अब उसको नॉलेज भी मिल गया, मतलब इल्म भी मिल गया। अक्ल थी, अल्लाह ने बाय बॉर्न
बाय बर्थ दिए, और फिर नॉलेज भी मिल गया, इल्म भी मिल गया कि नहीं सिगरेट हानिकारक है, तंबाकू हानिकारक है, दारू हानिकारक है। मतलब अल्लाह ने हराम कर दिए, मकरू कर दिए, वो बात तो अलग है। पर ज़ाहिरी नॉलेज एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सबको इतना, कोई भी बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा होगा उसको इतना तो पता है कि चलो फिजिकली हानिकारक तो है ना। चलो हम दीन की बात अभी नहीं करते। तो उससे पता चल गया। अब अगर उसमें हिकमत होएगी, मतलब वो जवान बच्चा है, उसे सब पता है कि सिगरेट पीऊँगा तो मेरे लंग्स ख़राब होंगे, ये वो। पर फिर भी जितने भी कॉलेज से बाहर अगर खड़े रहेंगे तो अमूमन बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर सिगरेट फूँक रहे होंगे। एप्रन पहना होगा, एमबीबीएस कॉलेज के बाहर खड़े हैं, और हम देखते हैं अक्सर कि वो सिगरेट फूँक रहे होते हैं। कुछ लोग दारू भी पी लेते हैं, है ना? तो उनको अक्ल भी है, इल्म भी है, नॉलेज भी है कि भई ये नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक है फिज़िकली, ठीक है? और फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हिकमत नहीं है। समझ गए आप बात? ये मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया। एक एग्ज़ाम्पल और दे देती हूँ नौजवानों का, ये जैसे कि यंग बच्चे हैं, उनको पता है कि गाड़ी चलाने का यंग बच्चों को कितना जुनून होता है, शौक़ होता है, और शेखी भी होती है कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, और ड्राइविंग बहुत, मेरी स्किल्स अच्छी है, तो दोस्तों को दिखाने के चक्कर में दोस्तों को बिठा लेते हैं गाड़ियों में, और अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं और जवान बच्चों की डेथ हो जाती है ना? तो उसमें अब देखो क्या है कि अक्ल उनको पहले से है कि ओवर स्पीड चलानी, और ओवर स्पीड से जुर्माना भी होता है, पुलिस भी तैनात करी जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, बताया भी जाता है, फाइन भी किया जाता है, सारी चीज़ें। तो फिर भी मतलब अक्ल है उनको कि गाड़ी को स्पीड से चलाना है, वो उनके लिए नुकसानदेह है, डेथ भी हो सकती है, गाड़ी को भी नुकसान, कम एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी भी टूट-फूट तो होगी ना, तो पैसों का नुकसान होगा, या उनको लग जाएगी तो एक्सीडेंट होगा तो कोई हड्डी-वड्डी टूट जाएगी तो ज़िंदगी भर का मसला हो जाएगा, और या फिर डेथ हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान डेथ का है, ठीक है? तो कुल मिला के उनको ये अक्ल है ना? और उनको नॉलेज भी है कि भई कितनी स्पीड करनी चाहिए और कितना चलाना चाहिए, उनको ड्राइविंग स्किल्स भी है। और फिर भी वो शेखाई में, वो दिखाने के चक्कर में, वो अपनी तारीफ़ के चक्कर में, या अपना एक जुनून के चक्कर में कि नहीं मैं इतनी स्पीड से चला सकता हूँ, या अपना एन्जॉय करना है, डोपामाइन मतलब एक हैप्पी हार्मोन्स होता है, उसको एक्साइटमेंट का हार्मोन कहते हैं, जो बॉडी में बहुत डेवलप होता है और ज़्यादातर टीनेजर्स को होता है। तो वो एक्साइटमेंट को ख़त्म करने के लिए कि नहीं एक बार तो चला के देखेंगे, तो वो सब करने के लिए वो कर लेते हैं वो काम, और उसका अंजाम भुगतना भी पड़ता है। कुछ लोग बच जाते हैं, हड्डी-वड्डी तुड़वाने तक रह जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी को टूट-फूट करने तक रह जाते हैं, शरीर बच जाता है, और कुछ लोग मौत तक भी पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि अकल तो है, नॉलेज भी है, इल्म भी है, पर हिकमत नहीं है, ठीक है? तो आज हम हिकमत को लेके एक टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको बयान करूँगी कि हिकमत है क्या? ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, आई होप आपको समझ में आ जाएँगे। तो बीच-बीच में ऐसे हम छोटे-मोटे टॉपिक्स भी डिटेलिंग में समझेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। क्यों समझनी ज़रूरी है, उस बात पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का कुल मिला के पहला जो काम था तस्बीह का, वो मैंने दे दिया है। तो आप शुरू कर सकते हैं, आई होप आप सब उठ चुके होंगे। तो ज़ुबान तो देखिए सबकी फ्री है। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं बात बता रही थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा कर गए हैं, मैं दूसरी ऑडियो में देती हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या सिखाया कि हर टाइप का इल्म का आप फ़ायदा उठाओ, तो उससे हमें दीन को जानने में और ज़्यादा मदद मिलती है, और ज़्यादा हम दीन को जान सकते हैं उसकी वजह से। तो मुझे मैंने भी एक नॉलेज लिया था, उस नॉलेज को अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दीन जानने में उसका यूटिलाइज़ मुझे भी समझ आ रहा है कि कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ब्रेन की एक्सरसाइज़ का एक कोर्स मैंने किया था, एनएलपी ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें इमोशंस और ये सारे हॉर्मोन्स और इसकी टीचिंग सिखाई जाती है। बच्चों का मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना है, फिज़िकली उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज़ कैसे करनी है। जैसे फिज़िकली हम एक्सरसाइज़ करते हैं मोटापा दूर करने के लिए या कोई भी बीमारी दूर करने के लिए, हम कम से कम वॉक से स्टार्ट करते हैं, फिर योगा करते हैं, एरोबिक करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जिम भी जाते हैं। तो उससे क्या है, बीमारियाँ ख़त्म होती है एक्सरसाइज़ से, और एक्सरसाइज़ करना भी सुन्नत है, अपनी बॉडी को ध्यान देना भी सुन्नत है, ठीक है? तो ऐसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है। ब्रेन भी थक जाता है, ब्रेन में भी कई तरीके के ख़यालात होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, दुःख होता है, एंग्ज़ायटी होती है, गम होता है। फिर उससे अपोज़िट खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा
پیسہ آ جاتا ہے یا بہت زیادہ عزت آ جاتی ہے یا بہت زیادہ، تو اس سے اس کو گھمنڈ ہو جاتا ہے، شہرت کا نشہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو شیخائی مارنے لگتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کو اپنے آپ سے نیچا سمجھنے لگتا ہے، تو یہ بیماریاں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے زیادہ خوشی ملنے پر۔ تو زیادہ غم ملنے پر وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور زیادہ خوشی ملنے پر وہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ کل ملا کے یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی ہے۔ تو میں نے جب وہ میں آپ کو بتا رہی تھی جو کورس سیکھا تھا برین ڈیولپمنٹ کا، تو اس میں ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ برین میں 10 لوبس ہوتے ہیں۔ لوبس مطلب میں آپ کو ڈرا کر کے بتاؤں گی کہ برین میں 10 لوبس ہوتے ہیں۔ چلو میں ڈرا کر کے ہی بتاتی ہوں۔ ہم نے آج 1 2 3 4 ڈیلی حدیث میں، تو آج میں نے حدیث اس لیے نہیں بتائی کیونکہ مجھے حدیث کا مطلب سمجھانا تھا، تو آج وہ کل سے انشاءاللہ ایک حدیث لکھوا دیں گے۔ پھر سورہ میں آج لیتے ہیں انشاءاللہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ وغیرہ جو میں نے بھیجا ہے وہ آپ کو زیروکس نکلوا کر یا لکھ کر، لکھنے کا ٹائم سب کے پاس میرے خیال سے نہیں ہوگا، تو آپ بہتر ہے کہ زیروکس نکال کے ایک فائل بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سیو رکھنی ہے آپ کو، اور ڈیلی اس پہ نظر ڈالنی ہے تاکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع اور خضوع آئے گا نماز میں۔ پھر ڈیلی بری عادت تو وہ تو آپ کر ہی لیں گے۔ پھر ڈیلی ایک دعا کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک تو پڑھنے والی دعا اور ایک مانگنے والی دعا۔ تو میں آپ کو ایک پڑھنے کی دعا بتاتی ہوں اور ایک مانگنے کی دعا بتاتی ہوں، تو وہ دونوں آپ کو حفظ بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگوں سے میں نے ویسے شاید پہلے کہہ دیا ہے پر پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم کو کانوں سے سننا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، انگلیوں سے لکھنا بھی ہے، زبان سے پڑھنا بھی ہے، دماغ سے یاد بھی کرنا ہے، دل میں بٹھا کر اس پہ عمل بھی کرنا ہے سارے ہاتھ پاؤں سے، اور پھر آگے لوگوں تک بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں گے تب جا کے یہ ذکر کا اتنا بہترین معجزہ یا اثر یا چمتکار جو بھی آپ کہہ دیں وہ انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ایک چیز کر دی ایک چیز چھوڑ دی۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں جو بھی چیز بھیج رہی ہوں سب کے سب ضروری ہے، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ جو سننا ہے وہ سننا ہی ہے، اور میں نے آسان طریقہ بتا دیا کہ آپ کو لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ پرنٹ آؤٹ نکال لو۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس پرنٹر ہوتا ہے، نہیں ہے تو آپ کو دیکھو یہ تھوڑی تو تکلیف دیکھنی پڑے گی، آپ کو زیروکس نکالنی پڑے گی، اور پھر بھی نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا رات کو لیٹ سو یا صبح جلدی اٹھ کے یہ ایک بک میں لکھ لو سارا، کیونکہ سارا کچھ کام آئے گا، اور یہ ایک بار کا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے دیکھ لیا آپ کو یاد ہو گیا، نہیں، یہ ڈیلی آپ کو روزانہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کل کو بھول گئے تو آپ واپس سے دیکھ کے یاد بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا روزانہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو اسی لیے یہ معمول بھی کرنا ہے، جیسے کہ میں نے دعا بھیجی کھانے سے پہلے کی دعا، تو وہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ہے، بسم اللہ تو وہ پڑھنی ہے۔ بیچ میں بھول جاتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھنا ہے تو بیچ میں کیا پڑھیں گے، تو بسم اللہ اول و آخر، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ پھر اس کے ترجمے بھی ہے، تو وہ ترجمے بھی آپ کو لکھ کے دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ترجمے کے ساتھ اپن یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اثر بھی آئے گا اور اللہ کا بہترین شکریہ اپن ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، جو زیادہ عمر والے ہیں نا تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں اگر حفظ نہیں ہوتی ہے تو ہر دعا ہندی میں بس اس کو یاد رکھ لے، اور پھر بھی یاد نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی کام ہو شروع کرے بسم اللہ سے، ختم کرے الحمدللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے اور کام ختم ہونے کے بعد الحمدللہ بولے، کوئی حال چال پوچھے الحمدللہ، کوئی کچھ بھی پوچھے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم بسم اللہ پہ بھی ایک پورا ٹاپک بیان کریں گے، الحمدللہ پہ بھی پورا ٹاپک بیان کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں ورڈز کی اہمیت کیا ہے۔ چھوٹے سے ورڈ سے پر بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے وجود میں اور ہماری پوری صبح سے لے کے رات کی روٹین میں، اور اس سے ہمیں فائدے بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ بسم اللہ بولتے ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ شیطان وسوسے ڈال کے ہمارے کام جو نیک کام ہے وہ روک دیتا ہے نا، کوئی لفڑے میں ڈال کے یا کسی بھی چیز کو، اس کے پاس ہزاروں لاکھوں پیترے ہیں، چالیں ہیں اس کے پاس الگ الگ، ہے نا۔
तो इसीलिए आपको बिस्मिल्लाह तो हर काम से पहले पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। वैसे मैं सारी एक एक करके रोज़ाना दुआएं भेजूंगी। कोशिश ये करनी है जो जवान हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो सारे, तो वो सब इसको हिफ्स करें। और हिफ्स करने का तरीका एक भी मैं बता दूँ, ये भी आप कर सको तो आँखों से जितना हो सके टीवी वगैरह या कोई न्यूड फ़िल्म है या कोई ऐसा कानों से गाना सुनना या कोई ऐसा जो अल्लाह को पसंद नहीं, वो सारी बातें आँखों से, कानों से, मुँह से, और मुँह से ग़ीबत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को लड़ाना नहीं है। तो जितना, और ज़ुबान से तो हमें अब ज़िक्र ज़्यादा चालू करना है, तो ज़ुबान फ्री नहीं रहेगी ज़िक्र में तो ज़िक्र करती रहेगी तो दूसरी बातों का ज़ुबान को भी वक़्त नहीं मिलेगा। कुल मिला के हमारी सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं ना, उंगली हो गई, उंगली के पोरे हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, नाक हो गई, कान हो गई, आँख हो गई, ये सारे के सारे जब हम मैदान हशर में होंगे, मरने के बाद कब्र में जाएंगे, कब्र के बाद जब क़यामत आएगी और क़यामत के दिन जब सबको वापस ज़िंदा करके मैदान हशर में बुलाया जाएगा और सबका हिसाब किताब होगा, तब हमें इतनी हमारी खुली किताब हो जाएगी, तो एक तो हमारा अमालनामा खोल दिया जाएगा, सबके सामने वीडियो दिखाई जाएगी कि हमने क्या करतूतें करी हुई है। और दूसरा ये कि हमारे खुद के जो ऑर्गन्स है ना, ये भी गवाही देंगे कि या अल्लाह, इसने हाथ बोलेगा इसने मेरे ज़रिए इसने चोरी करी थी, या ज़ुबान बोलेगी इसने मेरे ज़रिए कई लोगों को लड़वाया, कई लोगों का दिल दुखाया, कई लोगों को ये इसकी ज़ुबान पे घमंडी था, ये हकीर समझता था। तो इस तो और सबसे ज़्यादा, और आँखें बोलेगी कि या अल्लाह, इसने मेरे मेरे से है ना काफ़ी नाफरमानियाँ करी, गलत-गलत चीज़ें देखी, गंदी-गंदी चीज़ें देखी, अश्लील चीज़ें देखी, टीवी देखा। टीवी देखने का मना क्यों है? क्योंकि उसमें आधे-अधूरे कपड़े पहन के लड़कियाँ आती, ये वो तो सब हराम चीज़ है। फिर कान से गाने सुने, गाने नाउज़ुबिल्लाह क्यों सुनने का मना करते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, बहुत गलत-गलत गाने, आप सोचो, आप गौर करो। मेरे को याद नहीं आ रहा अभी मैं, पर कोई एक ऐसा गाना मैं उठा के लाऊँगी जिसमें अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह बेअदबी हो रही है ना? जैसे कि मैं गाने अभी सुनती नहीं हूँ ना, तो मुझे याद नहीं है, कोई याद आ जाए अभी। कोई जैसे कि तू खुदा है, ऐसे होता है ना, जैसे प्रेमिका प्रेमी को खुदा और नौज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ ऐसे गाने होते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन फिर सुनकर भी बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करोगे ना, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएगी, मेरा यकीन करो, मेरा तजुर्बा है, ठीक। अब मैंने डेली एक दुआ भी बता दी, और नमाज का जो है ना, सना का जो तर्जुमा मैं बताने वाली थी, क्योंकि नमाज में सबसे पहले हम सना से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अचानक याद आया कि नमाज से पहले हम नमाज जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए, और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनको हकीर ना समझे, जो पढ़ने वाले वो हकीर ना समझे। पहले ही बता रही हूँ कि अगर कोई इबादत, देखिए मैं, चलो बीच में ये बात बोल देती हूँ, घमंड के 8 टाइप है, ठीक है। चलो मैं लिख के बता देती हूँ, घमंड के 8 टाइप है। तो वो आठों 8 घमंड में आते हैं, और घमंड जिसको हुआ, तकब्बुर जिसको हुआ, उस राई के दाने के बराबर भी हुआ, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघाएगा। तो चलो घमंड की बात पहले कर लेते हैं, ताकि जैसे जैसे दीन में आएंगे तो सबसे पहले वसवसा शैतान ये डालता है, घमंड वाला। और क्योंकि घमंड आते ही अल्लाह से दूरियां आ जाती है, तो घमंड नहीं करना है। चाहे इबादत का घमंड हो कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत करती हूँ, मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ती नहीं है, या 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ती हूँ, या मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो ये इबादत का घमंड है। और घमंड का नाम आता है तो लोग अमीरों पे उंगली उठाते हैं, पर अमीर का कैटेगरी में घमंड में तीसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा घमंड इल्म का होता है। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज घमंड की एक लिस्ट बना के बताती हूँ, ताकि आपको ध्यान में आए कि घमंड है क्या। और इंशाल्लाह सबको दुआ करनी है कि आज से घमंड छोड़ना है। बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, ये 3 चीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी अगर ये तस्बीह के असरात आप अच्छे वाले चाहते हैं तो, ठीक है। और रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान की मैं एक वीडियो भेजूँगी रमज़ान के हवाले से, कि जिसने अपने सीने में, अपने दिल में बुग़्ज़, कीना और तकब्बुर, बुग़्ज़ का मतलब है लोगों के लिए जलन, हसद, कि वो इतना मालदार है, उसका इतना बड़ा बंगला है, या उसमें इतना टैलेंट है, या वो इतना खूबसूरत है, या वो जो भी हो, किसी भी टाइप का हसद या जलन करेंगे तो वो बुग़्ज़ होता है। कीना मतलब हकीर समझना,
मतलब फिर खुद को आई एम समथिंग, मतलब मैं खूबसूरत हूँ, या मैं मतलब बुग्ज, मतलब वो सारा वो है, मेरे को कुछ नहीं दिया अल्लाह ने, नौजुबिल्ला। और की नाम है कि मैं सारी अना, मैं ऐसी, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं ऐसी, तो ये भी अल्लाह को पसंद नहीं, ठीक है। और तकब्बुर तो यही है कि चलो तकब्बुर, घमंड का जो है वो मैं पूरी 8 लिस्ट बताती हूँ, ठीक। अब लास्ट बचता है इस्तिखारा, तो मैं उसके रिलेटेड 2 वीडियो भेज रही हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे देती हूँ इस्तिखारे के बारे में। इस्तिखारा एक्चुअली क्या चीज़ है कि हम दुनिया में है ना, कोई भी दुनिया का काम, जैसे फ़र्ज इबादत तो अल्लाह ने बताई भी है, वो तो करनी करनी है, उसके लिए तो कोई इस्तिखारा नहीं होता ना, समझने वाली बात है। रोज़ा रखना है, रमज़ान में 30 रोज़े, उसके लिए कोई इस्तिखारा नहीं होगा। इस्तिखारा का मतलब ये है कि हम जब कंफ्यूज होते हैं ना कि ये काम करें या ना करें, ये काम बेहतर है या नहीं है, या ये काम अभी तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा है पर आगे जाके मेरी किस्मत में या मेरे लिए वो काम ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में घाटा तो नहीं लग जाएगा, या कोई रिश्ता कर रहे हैं किसी से अपने बच्चों का, तो ये उसके लिए परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा। ऐसी कई चीज़ें होती हैं ना दुनिया की, सारी कई क्या सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता, हमें मुस्तकबिल का पता नहीं होता। मुस्तकबिल का पता किसको, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को। तो हम अल्लाह से उसके लिए दुआ करते हैं। इस्तिखारा की स्पेशल दुआ होती है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। तो उसमें करना क्या होता है कि कोई भी नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, नमाज में भी मैं आपको बता दूं फ़जर और असर, इन दोनों के अलावा जैसे कि जोहर हो गई, मगरिब और ईशा, इसमें या तहज्जुद में भी आप कर सकते हो। तो इसमें आप है ना जैसे नमाज से फारिग हो गए, नमाज पढ़ ली आपने, उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़नी है। उसमें आपको कोई भी सूरह अलहम्द के बाद कोई भी सूरह पढ़ लेनी है। फिर सलाम फिरने के बाद नमाज फ्री हो गए, 2 रकात नफिल, और नमाज फ्री हो गए, उसके बाद आपको दुआ करनी है। वो दुआ का स्क्रीनशॉट मैं भेजूंगी, वो दुआ आपको करनी है, अरबी में पढ़नी है, और उसका तर्जुमा भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ताकि पता चले कि हम एक्चुअली दुआ मांग क्या रहे हैं। तो उस दुआ में तर्जुमा में आपको शॉर्टकट में बता दूं कि हम अल्लाह से ये मांगते, तब हमें नीयत में ये सोचना है, जैसे मान लो मुझे मुझे कहीं सफ़र पे जाना है, जैसे किसी का इनविटेशन आया है, मेरी बड़ी बहन का आया है कि कहीं जाना है, मतलब मुझे दावत दी है और मुझे जाना है। तो अब मैं अकेली जा रही हूँ, कोई मतलब साथ में नहीं चलने वाला है, तो फिर मुझे इस्तिखारा कर लेना है कि वो सफ़र मेरे लिए सही है या नहीं है। तो या अल्लाह तू इसमें मेरी मदद फरमा, या मैं कोई बिज़नेस में पैसा लगाना चाह रही हूँ, तो उस बिज़नेस में मेरे लिए ये बिज़नेस में घाटा तो नहीं लगेगा, तो कर्जा तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए मैं इस्तिखारा करना चाह रही हूँ। तो इस्तिखारे में हम अल्लाह पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब अल्लाह हमें रास्ता दिखा देता है। तो या अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए खैर है, उसके तर्जुमा मैं बता रही हूँ जो दुआ करते हैं, अगर ये काम मेरा इसमें मेरे लिए खैर है, मतलब अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, तो इस काम को बढ़ाना, क्योंकि काम तो अल्लाह ही बढ़ाएगा ना, काम में सक्सेस देना या जो भी काम तो अल्लाह बढ़ाएगा। तो कोई भी डील करने से पहले, पर हाँ उसके इस्तिखारा से पहले मशवरा करना ज़रूरी है, पहले अपनी अक्ल भी लड़ानी है। मशवरा करना सुन्नत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे, सहाबाओं से, इवन बच्चों से भी करते थे। तो पहले मशवरा कर लेना कि भाई मुझे ये बिज़नेस करना है, घर वालों से पूछ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, जो सक्सेसफुल आपके नियर्स एंड डियर्स है, जिनको बिज़नेस का गुर है, जैसे कि मैंने वो दिमाग के लोब्स बताए थे ना, कि हिकमत होती है, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उन लोगों से भी मशवरा ले लिया कि भाई मैं ये बिज़नेस करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से ये बिज़नेस कैसा रहेगा, या मेरे जो हालात है या मेरी सिटी के अकॉर्डिंग, या मेरे घर के हालात, या कोई भी मतलब उसके हिसाब से ये कैसा रहेगा, या मेरी खुद की नेचर, फितरत, बिहेवियर उसके हिसाब से कैसा रहेगा, या इस बिज़नेस को मैं कैसे कर सकूं। तो ये सारी मसले मसाइल होते हैं, तो मशवरा कर ले। मशवरे में 10-12 लोगों से करा, तो उसमें से 10 लोगों ने कहा कि हाँ करने जैसा है,
تو پھر اور آپ کا دل بھی مان رہا ہے پر دماغ کنفیوز ہے کروں نہیں کरूँ پھر بھی، تو پھر آپ استخارہ کر لیں، تو پھر نہیں استخارہ تو ہر دنیائی کام میں اگر کریں گے نا، ویسے استخارہ کرتے تو انشاءاللہ اللہ ہاں ہی کہتا ہے، مطلب اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو پھر ہم اس میں کیا دعا میں ترجمہ بتا رہی تھی کہ خیر ہو، مطلب یہ میرے لیے مفید و فائدہ مند ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کروا دینا۔ اور اگر اس کام میں کوئی نقصان آنے والا ہو تو مت کروانا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کام کیسے آپ کے کبھی خراب ہی نہیں ہوں گے۔ ہاں تھوڑے مسئلے مسائل اور یہ سب تو دیکھو زندگی میں آنے والے، ایسا نہیں ہوتا کہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ استخارہ کرا تو اب آپ کے کام میں کوئی مشکلات نہیں آئیں گے، پر ہاں یہ ضرور وعدہ ہے کہ کسی کا ہو جاتا نا کہ بہت زیادہ چنگل میں پھنس جاتا ہے، پارٹنر دھوکے باز ہوتا ہے، ہمارا مان لو پارٹنرشپ میں کرا ہے یا ہم نے اکیلے بھی کرا ہے، تو ہمارا سارا پیسہ ڈوب گیا، مال بھی خراب ہو گیا، بہت نقصان ہوا، اور اتنا نقصان ہوا، کروڑوں کروڑوں کا نقصان ہوا کہ ہم اس چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمیں کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی سب سچویشن میں آپ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، یہ سب نہیں ہوگا۔ ہاں چھوٹی موٹی مشکلات جیسے کبھی اتار چڑھاؤ ہو گیا، کورونا جیسی بیماری آ گئی تو تھوڑا بزنس ڈاؤن ہو گیا، پھر واپس ابھر گیا، ایسا سب چھوٹا موٹا تو دیکھو آزمائش تو آتی رہے گی نا، تو اور مسلمان کے لائف میں تو زیادہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کافروں کو تو کیا پرماننٹ عذاب دے دیا جائے گا جہنم کا، تو ان کو دنیا میں جو اچھے اچھے ہوتے ہیں نا، جیسے دان پون کرنے والے، مندر بنا، یہ سوری مندر نہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں، کسی کی شادیاں کر لیتے ہیں، تو یہ ایسے سب اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں اس کو صلہ دے دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اچھی صحت دیتا ہے، اچھی لائف سٹائل دیتا ہے، تو وہ سب دے دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، مسلمان نہیں بنے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا، توحید پہ نہیں آئے گا، غیر اللہ کو مانتا رہے گا، تو پھر اس کو پکی جہنم ملنے والی ہے، تو اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم رحمان کی تفسیر پڑھیں گے نا تب انشاءاللہ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو استخارہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اگر پھر بھی اس کو ڈیٹیل میں جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کرنا کہ بھئی مجھے اس کو اور جاننا ہے، کیسے کرتے ہیں کیا ہے، تو میں بتاتی ہوں، ویسے میں 2 ویڈیو بھیجوں گی تو اس میں آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ چلو میری طرف سے میں نے میرا سارا 10 پوائنٹ کمپلیٹ کر دیا، ایک نہیں کیا ہے ویسے، تو دعا نہیں کری آج، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ کئی وجہ ہے، کئی کارن ہے۔ ایک کارن تو یہ کہ ابھی بیکانیر میں برادری میں کوئی انتقال ہو گیا، تو مجھے وہاں جانا تھا، دوسرا کہ میں خود پیریڈس میں آ گئی ہوں، اور تیسرا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اور پیریڈس میں ہوں تو دعا ایکچولی نماز کے بعد ہی ایسے مطلب حقیقت میں شعوری طور پہ دعا مانگی جاتی ہے، تبھی احساسات ہوتے ہیں، تو ایسے میں دعا مانگوں گی تو ٹھیک نہیں ہے، دعا تو کر ہی رہی ہوں، دعا سبھی کے لیے کر رہی ہوں، پر اور پھر بھی آپ لوگ کہو گے، ڈیمانڈ کرو گے کہ نہیں نہیں دعا دعا دعا، جتنی لکھی ہوئی آئے گی تو میرا حوصلہ افزائی کرو آپ لوگ بھی، تاکہ میں جو اللہ مجھ سے جو یہ خدمت میرے ذریعے لے رہا ہے تو مجھے بھی ہمت آئے، کیونکہ میں تھوڑی بیمار بھی چل رہی ہوں، تو میری حوصلہ افزائی کرو کہ نہیں دعا سنیں گے ہم، دعا دعا دعا، ایٹ لیسٹ 10 12 آئے گی نا دعا دعا لکھی ہوئی، تو انشاءاللہ میں دعا کروں گی، اوکے؟ اللہ جو لاسٹ ویڈیو میں نے بھیجا ہے نا، وہ آپ کو اندھیرا کر کے ایک دم اکیلے ہو سکے تو ہیڈ فون لگا کے آپ کو یہ دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت پاورفل ویڈیو ہے، اور اس میں اللہ کا تعارف، مطلب اللہ کون ہے اور ہم کون ہیں، تو یہ پتہ چلے گا، اور پھر اس کا ہے نا دماغ میں تصور رکھ کے پھر نماز پڑھنا، انشاءاللہ نماز میں بہت فرق آئے گا آپ کے۔ گھبرانا نہیں ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ 1 چالو کرو گے تو 2 پہ آؤ گے، 2 کرو گے 3، 3 پہ آؤ گے، 4 پہ آؤ گے، 5 پہ آؤ گے، اور انشاءاللہ میری امید ہے ورکشاپ ختم ہونے تک 100% جتنے بھی لوگ ہیں وہ 5 نماز تو ایٹ لیسٹ پوری کمپلیٹ بنا قضا ہوئے پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، میری امید ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس میں میرا رپلائی کرنا کہ یس یس لکھ کے، تو مجھے اچھا لگے گا کہ ہاں سب کوشش تو کر رہے ہیں نا، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے وہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو کوشش پسند ہے، کوشش کریں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور انشاءاللہ 5 وقت پہ آ جانا سارے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے۔
अच्छा एक बात और, अभी एक बहन ने प्रॉब्लम बताई है कि ये है ना, हम लोग डन डन और ये सब लिखते हैं ना तो बीच में कचरा हो जाता है, और आपकी जो प्रॉपर वीडियोस ऑडियोज है ना वो ढूंढनी पड़ रही है। तो इसलिए पर्सनल अगर देंगे तो सही रहेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, फिर आप सब लोग जो डन लिख रहे हो ना सब मेरे को पर्सनली भेज दो। तो सिर्फ इस स्क्रीन पे सिर्फ मेरे ही मैसेज दिखें डले हुए, तो वो सही रहेगा। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच जिसने भी खाया उसके लिए। तो ऐसा करते हैं, अब आज से ऐसा करो कि जो भी डन है, हाँ पर रिप्लाई ज़रूर करना, मेरे पर्सनल फ़ोन पे मैसेज करना, ठीक है आज के बाद से। और फिर जब मैं फाइनली मैं खुद एक लिस्ट बस डेली रात को डाल दूंगी कि इन लोगों ने अपना वर्क किया है उनका नाम आएगा, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी आएगा। और जो लोग 3-4 दिन से ज़्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे मतलब, तो मैं उनको रियली डिलीट करने वाली हूँ। मुझे, मैं अभी फिर बता रही हूँ, किसी का दिल नहीं दुखा रही, पर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, ठीक है। वो एक बार तो मुझे बता ही दे कि नहीं, हाँ आपका वॉच, जैसे अभी मेरे पास 2 फ़ोन आ गए उस लिस्ट में से जो अभी मैंने अनाउंस करी थी कि नहीं नहीं वो देख तो हम सारे रहे हैं पर अभी कुछ दिक्कत है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे मुझे सारों के चाहिए, ठीक है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे कोई 5 दिन बाद रिप्लाई चालू करे, कोई अपना मसला हल करके करे, कोई तबीयत किसी की ख़राब है तो वो ठीक होके करे, वो कोई मसला नहीं। पर एक बार तो एटलीस्ट मुझे बताए कि वो सारी चीज़ें मेरी देख रहा है, सब कुछ है, मतलब उसके रहने का कोई मकसद है, हकीकत में वो चाहता है अपनी परेशानियों का हल ढूंढना, और अपनी दुआएं कबूल करवाना सब चाहता है। तो एक बार तो मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो लिस्ट मैंने अनाउंस करी थी ना 5-6 लोग हैं, उनको मैं आज रात तक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है ना। कॉल तो कर ही सकते हैं ना, कॉल करना सबको आता है, तो कॉल करके बता दे अपना मसला। और अभी भी मेरे पास कॉल ही आए थे कि भाई ये वजह थी इसलिए नहीं कर रहे, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सारे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आज से अब कोई डन डन और जो भी है अपने अपनी तरफ से, चलो मैं सबको मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि कोई मैसेज भेज ही ना पाएगा। तो सबको पर्सनल भेजना है आप, ठीक है। चलो ओके बाय। थैंक यू सो मच स्वीटी, ये सही बताया आइडिया कि सही में सारा हौच पौच हो रहा था। तो अब अपन मैंने सबको स्टॉप कर दिया, अब कोई मैसेज कर भी नहीं सकेगा वैसे भी। पर मुझे पर्सनली रिप्लाई सभी को करना है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो आपका बनता है, मतलब कंपलसरी है, मुझे पर्सनली करना पड़ेगा। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, वो लिस्ट मैं अनाउंस करूंगी बस खाली डेली रात को, ताकि सबको ये रहे कि हाँ भाई मेरा नाम यस लिस्ट और नो लिस्ट। और नो लिस्ट को फिर ज़्यादा देर तक यहाँ रखेंगे नहीं, फिर 1-2 दिन का मौका देते हैं। कॉल तो देखो सभी कर सकते हैं, इसलिए मैं मौका देती हूँ, हो सकता है कोई 1-2 दिन बिजी रहे, तो मौका दे देते हैं। 1-2 दिन में कॉल आ जाना चाहिए सबका कि भाई इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हैज़ का मतलब होता है पीरियड्स। एक्चुअली ये दोनों वीडियो डालने का मेरा मकसद ये था कि इस ग्रुप में कई लड़कियां और लेडीज़ बोल रही है कि है ना, है मैं पीरियड्स में हूँ इसलिए नहीं पढ़ रही, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही। तो तस्बीह तो पढ़ ही सकते हैं, सारे पढ़ सकते हैं, तो ये हदीस से साबित है पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग तस्बीह तो पढ़ो, ज़ुबान पाक होती है, ज़ुबान से पढ़ सकते हैं ना। तो उसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, ये फर्जी रिवायत है कि फर्जी बताया रखा है कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। अस्कार भी कर सकते हैं, अस्कार का मतलब है जो मैं भेज रही हूँ ना, जैसे सैयदुल इस्तगफार भेजा है, तो सुबह शाम के जो अस्कार है, एक्चुअली सुबह शाम के अस्कार में बहुत सारे हैं, जैसे 23-24 है। तो इंशाल्लाह लास्ट में वर्कशॉप ख़त्म होगा तो मैं कुछ मटेरियल आप लोगों को सेंड करूँगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, और जो सुन्नत है मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करनी है, उन्होंने जो खुद पढ़ा हर नमाज के बाद और जो भी है, तो मैं भेजूँगी। आप लोग जेरोक्स निकाल के रख लेना, फिर आप लोगों का मामूल बनाते रहना धीरे धीरे, ठीक है। तो वो अस्कार बोल रही हूँ। और तस्बीह है तो ये जो दुरूद शरीफ पढ़नी, इस्तगफार पढ़ना और कलमा पढ़ना, सब कुछ पढ़ सकते हैं, ज़ुबान पाक होती है। और इस वक्त तो ज़िक्र और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, बहुत चीज़ें नहीं करते, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो हमें ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। फालतू बातें नहीं करनी है, गिबत नहीं करनी है, ज़ुबान से और भी काम होते हैं जो फालतू के होते हैं, जिनसे गुनाह बढ़ते हैं, तो ऐसे काम नहीं करना है। ज़िक्र में व्यस्त रहेगी, ज़ुबान बिज़ी रहेगी, तो ऑलरेडी हम दूसरे काम करेंगे ही नहीं, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ये है। मुझे यकीन है कि आज के बाद कोई हैज़ मतलब पीरियड्स
اور جنابت مطلب ہم بستری، تو یہ دونوں کی ناپاکی میں تسبیحات نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو یہ بتا رہی تھی کہ اس طریقے سے ہمیں شیڈول بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ نماز کا ٹائم ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ لکھ دی ہم نے، جیسے آج 8 مارچ ہے تو 8 مارچ فجر اگر پڑھی ہے تو ٹک کرنی ہے، نہیں پڑھی تو اپن کو کراس کرنی ہے، اور قضا ہوئی ہے تو اپن کو گول بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کرنا ہے نا، لازمن کرنا ہے۔ پھر ظہر پڑھیے تو ٹھیک ہے، عصر مغرب عشاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نماز کا چارٹ۔ تو دھیرے دھیرے جیسے 9 آئے گی تو یہ کل کا شیڈیول، یہ 10 کا، ٹھیک ہے۔ اب جس کی چھوٹ گئی ہے اس کو کیا کرنا ہے، جس کی قضا ہو گئی اس کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں بتاؤں گی اس کا سولوشن کیا ہے انشاءاللہ۔ ہم صرف رائٹ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نماز کا چارٹ۔ اب یہ میں ایک چیز، یہ پورے دن کا جو شیڈول ہے ہمارا ورک شاپ جو چلے گا اس کا میں نے 10 کام مطلب بتائے تھے۔ تو 10 کام میں جیسے پہلا کام ہے، جیسے یہاں ڈیٹ لکھ دی، اور یہ ایسے روز آپ کو بنا کے اس کا فوٹو کھینچ کے اسکرین شاٹ مجھے بھیجنا ہے، اور یہاں پہ اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے کہ میں بھیج رہی ہوں تو ریحانہ، ٹھیک ہے۔ تو ریحانہ نے یہ اتنا ڈن کر دیا۔ جیسے کہ تسبیحات میں درود ابراہیم 3 تسبیح پڑھ لی، اور توبہ استغفر اللہ کی 3 تسبیح پڑھ لی، اور آل اسکرین شاٹس جو میں دے رہی ہوں آپ کو جو پڑھنے کے لیے، وہ آپ نے اگر پڑھے ہیں تو ڈن، نہیں پڑھے ہیں تو کراس، اور کچھ پڑھے کچھ نہیں تو وہی گولا کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ آگے جا کے آپ کو یہ ساری چیز کر سکو۔ دوسرا، کوئی بھی اچھا کام کرنے کو کہا تھا، جیسے کہ میں نے اگزامپل لکھا ہے کہ آج میں نے طبیعت پوچھی کسی کی، چھوٹے سے چھوٹا کام جو آپ 2 منٹ 1 سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا کام ہے ڈیلی حدیث۔ اب یہ حدیث تو ایکچولی کیا، آج تو میں نے جمعے کا دن تھا، سب بیزی ہوتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے آج یہ ڈیلی حدیث اور یہ سب میں نے خود ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ڈیلی حدیث کا جیسے میں آڈیو بھیجوں گی تو وہ آڈیو آپ نے سن لیا ہوگا، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی میں کر کے دوں گی، اور اسکرین شاٹ بھی بھیجوں گی۔ تو یہ سب آپ کو سب دیکھ لو، سن لو، اور اس پہ عمل کرنے کی نیت کر لو، آپ کو ڈن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے چوتھا نمبر، اس میں انشاءاللہ ہم ایک چھوٹی سی، میں نے جیسے بتایا تھا سورہ کو، یا بڑی پھر سورہ سٹارٹ ہوگی، چھوٹی سورہ ختم ہو جائے گی، تو بڑی آیت جب سٹارٹ ہوگی تب ان آیتوں کا تھوڑی تھوڑی 2 3 کا ٹرانسلیشنز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کرنے کی نیت کریں گے۔ پھر 5th والا جو ورک ہے اس میں ڈیلی بری ایک عادت چھوڑنی ہے۔ اب اس میں نے اگزامپل لکھا ہے، جیسے کہ آج میں نے سارا دن اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج میں نے جھوٹ نہیں بولا، آج میں نے چوری نہیں کی، کچھ بھی، جو بھی آپ کرنا چاہو وہ۔ پر یہ جو ہے نا، میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اپنے اسکرین شاٹ میں یہ سارا کچھ نہیں دینا ہے آپ کو، یہ ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، نہ تو نماز کا نہ ہی یہ، آپ کو صرف مجھے اسکرین شاٹ اسی کا بھیجنا ہے اونلی، کہ میں نے اتنی تسبیح پڑھی، بس دیٹس اٹ۔ باقی یہ آپ کو لکھنا اپنے لیے روز ہے نا، آپ جانو اللہ جانے، بس دوسروں کو نہیں بتانا ہے۔ تو یہ آپ کو صرف میرے کو تو اتنا ہی بھیجنا ہے، پر یہ آپ کو ڈیلی روٹین میں بنانا ہے۔ اگر میں اسکرین شاٹ منگاؤں گی تو یہ اچھا نہیں رہے گا، سب کو پھر اپنا وہ رہے گا کہ یار اس کو پتہ چل گیا، اس کو تو اللہ جانے آپ جانے، پر یہ بنانا ضرور ہے پلیز، یہ بناؤ گے تبھی یہ شیڈول میں روٹین میں آئے گا، اوکے۔ تو یہ ہو گئی 5th۔ اب ہم 6th والی بات تھی کہ ڈیلی ایک دعا، تو دعا بھی انشاءاللہ میں اپن جب اٹھتے ہیں اور سوتے ہیں تب تک کی جتنی بھی روٹینز میں دعائیں آتی ہیں، ساری دعا دھیرے دھیرے کر کے اپن روزانہ ایک ایک دعا سیکھیں گے، تو وہ ایک دعا کی میں وہی آڈیو اور اسکرین شاٹ بھی بھیجوں گی انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے، تو وہ دعا انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور عربی میں نہیں آتی تو ہم ہندی میں بھی اس کو مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا بھی کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ پھر وہی آڈیو اور ویڈیو، مطلب جو بھی میں ان ساری چیزوں کے لیے آڈیو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ سب آپ کو لکھنا ہے ڈن، ٹھیک ہے نا۔ 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ یہ سب ڈن کر سکتے ہو، بس 24 گھنٹے میں آپ کو کرنا ہے، ڈیٹ چینج ہوتے ہی آپ کو پرانا والا جو بھی ہو ڈن ہونا چاہیے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ 8th نمبر ہے نماز کا ترجمہ۔ نماز کا ترجمہ جیسے ثنا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نماز پڑھنا، اور لاسٹ میں ہم قیام میں جو بیٹھتے ہیں اور اس میں جو بھی پڑھتے ہیں دعائیں معصورہ، درود ابراہیم، ہم سب کا ترجمہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے سیکھیں گے اور یاد کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا نماز کا ترجمہ۔ تو یہ جب نماز کا ترجمہ جیسے ہی میں دھیرے دھیرے کر کے ہم بتائیں گے تو اس کو بھی پھر ڈن کرنا ہے، اوکے۔ پھر 9th نمبر میں دعا سننی ہے، جو میں دعا آڈیو میں آپ کو دعا میں خود انشاءاللہ کروں گی، اور آپ کو وہ سننی ہے، اکیلے میں بیٹھ کے سنیں گے تو بہت ہی افیکٹو رہے گی، اور پھر آمین بھی بولنا ہے اس میں ہر دعا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی دعا، اور لاسٹ میں نے بتایا تھا استخارہ۔
تو استخارہ SOS ہے. SOS مطلب جب آپ کو ضرورت پڑے تبھی کرنا ہے. تو استخارہ کیوں کرنا چاہیے, سنت طریقہ کیا ہے کرنے کا, اور اس کے کرنے کے کیا فائدے ہیں, وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی, پھر آپ کو یہ کرنا ہے. تو استخارہ SOS ہے, تو یہ ڈیلی روٹین میں نہیں رہے گا. جب بھی آپ کو کوئی دنیاوی معاملات آتے ہیں, آپ کو کرنا ہے کہ بھئی مجھے کس سے رشتہ کرنا چاہیے, اللہ سے پوچھنا ہے, یا مجھے کوئی گاڑی لینی ہے, یا مجھے کوئی بزنس کرنا ہے, مجھے کوئی سفر کرنا ہے, کوئی بھی چیز کے لیے آپ کو استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب آپ کو یہ پورا پیج اس طریقے سے بنانا ہے. تو یہ میں نے ویڈیو آپ کو بتانے کے لیے بھیج دی. اب میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی بھیجتی ہوں, تو آپ جو نوٹ بک آپ نے لی ہے آج سے, تو اس نوٹ بک میں اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اور ڈیلی بنانا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ چاہو تو آپ مجھے پرسنل بھیج سکتے ہو, تاکہ اس سے کیا ہے مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. آپ یہ ساری چیزیں پرسنل مجھے بھیج سکتے ہو, اور انشاءاللہ آپ اور میں اور اللہ, اس کے علاوہ تیسرے چوتھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس کی انشاءاللہ میں گارنٹی لیتی ہوں. ٹھیک ہے, میں دیکھوں گی اور ڈیلیٹ کر دوں گی ہاتھوں ہاتھ. چلو ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو چھٹا کام ہے, جیسے یہ ہو گیا نا, تسبیح کا ہو گیا. سیکنڈ اچھا کام, وہ تو آپ کو کرنا ہے, عمل میں لانا ہے. تو وہ آپ نے کر لیا. مان لو جیسے میں نے لکھا ہے کہ آج میں نے طبیعت پوچھی. ٹھیک ہے, ممی کی, پاپا کی, دوست کی, جو بھی بیمار ہے یا بیمار نہیں بھی ہے, طبیعت پوچھ لی, یا کسی کو ہنسا لیا, یا گائے کو روٹی کھلا دی, چینٹیوں کو کھلا دی, کتوں کو کھلا دی, یا گائے کو پانی پلا دیا, یا چڑیوں کو پانی پلا دیا. مطلب کوئی بھی ایک اچھا کام کرنا ہے, چھوٹا سا, جو 1 سیکنڈ میں, پر وہ ڈیلی وے روٹین میں چالو کر دینا. پھر ڈیلی ایک حدیث میں نے نہیں بتائی کیا آپ لوگوں کو ابھی تک. ہاں, ڈیلی ایک حدیث پہ آتے ہیں. چلو اپن یہی کور کر لیتے ہیں. تیسرا, ڈیلی ایک حدیث. ٹھیک ہے, ڈیلی ایک حدیث میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث ہے کیا. حدیث کا تعارف کروا دیتی ہوں, آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں. جیسے حدیث جو ہے نا, حدیث کا مطلب ہوتا ہے بتانا. کہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حدثنا مطلب بتانا, آپ کو بتایا. جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے, اور اخلاق کیا ہے جو انہوں نے کرا. سنت کیا ہے, سنت بولتے نا, سنت کو فالو کرو. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ صرف کہا ہی ہے, یہ کرو وہ کرو یہ کرو, اور خود نے نہیں کرا. نہیں, انہوں نے کر کے بھی بتایا, انہوں نے کہہ کے بھی بتایا. مطلب انہوں نے ہر طرف سے, وہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کو 100% فالو کرنے لگ گئے تو اللہ اپنے آپ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں 100% کیسے ہم ان کو فالو کریں گے کہ ہم ان کی آٹو بایوگرافی کو سمجھیں گے. مطلب آٹو بایوگرافی مطلب ان کی پوری جیون, ان کا جیون, وہ جب سے پیدا ہوئے تھے اور جب سے وفات پائے تھے, تب سے پورا ان کا سٹوری, ان کی کہانی, ان کی ایک مووی ٹائپ جیسے ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی تو مشکلات کو جھیلا ہے. ہمیں بس سمجھانے کے لیے, اللہ کا ہم سے انٹروڈکشن کروانے کے لیے, اور اللہ کی پہچان کروانے کے لیے, اور اللہ کا دین سمجھانے کے لیے, اللہ کا کلام سمجھانے کے لیے, اللہ کا حکم سمجھانے کے لیے, اللہ نے کیا قانون قاعدے اسلام میں بنائے ہیں, کیا سیرت ہے, سیرت مطلب کیا لاز ہے, کیا قانون ہے, کون سا تکلیف ہو تو کیا کام کرنا ہے, کون سا بات نکلے تو اس میں کیا کرنا ہے, ہر چیز قرآن پاک میں اللہ نے بتا دی ہے. تو قرآن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اپن کو وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ہو گیا قرآن. پر قرآن میں ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے قرآن میں صرف لکھا ہے الصلاۃ والزکوٰۃ, ہر بار لکھا ہے, مطلب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اب نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے, وہ کون بتائے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جو بتائی وہ حدیث میں ریٹن میں لکھ دی. ہمارے جتنے مفسر ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر انہوں نے لکھی نہیں ہوتی تو وہ ہم تک نہیں پہنچتی نا, کیونکہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے نا. تو وہ لکھی ہے, انہوں نے بہت محنت کری ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ, ترمذی شریف, داؤد, جتنی بھی حدیث ہیں, تو ان لوگوں نے اتنی محنت کر کر کے اکٹھا کر کے انہوں نے کلیکشن کیا ہے, تو وہ ہوتی ہے حدیث. سمجھ گئے؟ تو السلام علیکم. جیسے کہ یہ ڈیلی بری عادت ہے نا, اس میں یہ کور کریں گے ہم. میں آپ کو پورا بتا دیتی ہوں. جیسے آج 9/3/24 سیٹرڈے ہے. پہلا ہمارا کام بتایا تھا تسبیح کا, اس میں توبہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ,
दुरूद इब्राहिम, ला हौला वला कुव्वता। फिर नेक काम करना है, वो आपको करना है, ठीक है। डेली हदीस में आपको अभी उसका कंटेंट और वो सब भेज रही हूँ। और सूरह इखलास में आज सूरह में सूरह इखलास पढ़ेंगे, जो इसकी भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि सूरह इखलास जो है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 सूरह छोटी छोटी दी है। तो सूरह इखलास जो है ना, वो अल्लाह ताला ने खुद के लिए नाजिल करी है। और एक सूरह है इन्ना अतैना कल कौसर, सभी पढ़ते हैं, सबसे छोटी छोटी सूरह सबको पता होगी, तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल की। और एक सूरह और है छोटी, वो है वल अस्र। इंशाल्लाह हम आगे जाके इसके तर्जुमे पढ़ेंगे, आज हम सूरह इखलास को कवर करेंगे। तो उसमें हमारे लिए वो नाजिल हुई है, इंसानों के लिए, ठीक है। तो ये 3 सूरह नाजिल हुई है जो छोटी छोटी है। तो एक अल्लाह ने खुद के लिए करी है, एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करी है, और एक हमारे लिए करी है। तो आज हम सबसे पहले जो अल्लाह के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे पहले कौन है? अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आज एक मैं वीडियो भेजने वाली हूँ कि अल्लाह है कौन। अल्लाह की तारीफ आज कराऊंगी, तारीफ मतलब अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। एक्चुअली हमें पहले तो ये जानना है कि अल्लाह है कौन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कौन, ठीक है। तो अल्लाह के सामने हमारी औकात क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्लाह की मैं एक वीडियो भी भेजूंगी। फिर आता है डेली बुरी आदत। डेली बुरी आदत में ये अपन इसको कवर करेंगे कि ये हमारा एक ब्रेन है। मैंने एक NLP ट्रेनिंग करी थी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने कोर्स किया था। इस कोर्स में एक्चुअली मेरा मकसद तो ये था कि बच्चों की मेमोरी पावर कैसे बढ़े, और ये सब मैंने एक सर्च किया था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ऐसे चीज़ें सीखने का बहुत शौक है कि किसी को फ़ायदा पहुंचे। तो ये बच्चों को कैसे, मतलब आजकल के बच्चे जो मोबाइल में गुम हो जाते हैं, उनका मेमोरी पावर लॉस हो जाता है, तो उनकी मेमोरी कैसे बढ़े, उनको कैसे फ़ायदा हो, तो ये सारी चीज़ें सिखाने का एक कोर्स होता है NLP, जो 6 महीने का होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसका सर्ट ही है। तो मैं उसकी नॉलेज आपको शेयर कर देती हूँ। उसमें अपन ये जो इल्म के दायरे में इसका क्या फ़ायदा है वो अपन सीखते हैं। तो हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ठीक है। हमारे दिमाग के अंदर ये 10 लोब्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। ये अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन। वो लोब्स का, हर लोब्स का एक काम होता है। मतलब एक लोब्स है जो इमोशन से भरा हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बात बात पे रो जाते हैं, मेरे जैसे, है ना। मतलब छोटी छोटी बात, खुशी की बात हो तो भी आंखों में आंसू, गम की बात हो तो भी आंखों में आंसू। तो उनका ये लोब्स एक्टिव होता है, इसलिए वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं। वो एक्टिव होता है, किसी का एक्टिव नहीं होता है तो वो रोते नहीं है, ठीक है। फिर किसी की स्किल्स की होती है, जैसे फाइन स्किल मोटर्स कहते हैं ना। जैसे जितने भी जो मैकेनिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, पेंटर हो गया, और आर्टिस्ट हो गया, जो ड्राइंग बनाता है, जो पेंटिंग करता है, कुकिंग करता है, शेफ हो गए, कई है, मतलब बहुत सारी स्किल्स दुनिया में अल्लाह ताला ने लोगों को दी है। तो जिनकी ये स्किल्स की जो एक्टिव होती है ना, वो उनके हाथों में हुनर होता है, हाथों का हुनर, समझ गए ना आप, हिंदी में हाथों का हुनर। तो वो स्किल्स इनकी ये सुपर एक्टिव होती है, तब वो स्किल्स वाले बन जाते हैं। किसी में नहीं होती है तो वो नहीं होते, ठीक है। फिर किसी की मेमोरी पावर बहुत तगड़ी होती है। आपने देखा होगा, जैसे अभी एक बच्चे का 100 में से 100 मार्क्स आ गए, अरे वाह, मतलब सोच के ही ताज्जुब होता है कि 100 में से 100 बंदा कैसे ला सकता है। तो उसका ये लोब्स एक्टिव होता है, मेमोरी पावर, ठीक है। फिर किसी में टैलेंट होता है। टैलेंट मतलब कई टाइप के टैलेंट होते हैं। कोई जैसे रस्सी पे चल लेता है, कोई हवा में उड़ लेता है, कोई अलग अलग, आजकल टिकटॉक पर आप लोग देखते होंगे, अलग अलग लोग इजाद करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, टैलेंट बताते हैं अपना। कई तरीके का टैलेंट होता है, ठीक है। तो उसका वो ये लोग इन्वेंशन करते हैं, टैलेंट बताते हैं अपना। कई तरीके का टैलेंट होता है, ठीक है। तो उसका वो ये लोब्स एक्टिव होता है, इसलिए उसके पास होता है, दूसरों के पास नहीं होता। तो पर अल्लाह ने सबको एक एक एक्टिव दिया है, और सारे एक्टिव कर सकते हैं अपन, सारे एक्टिव कर सकते हैं। और सारे एक्टिव करने के बाद ही एक वर्ड आता है, एक वर्ड निकलता है, उसको कहते हैं हिकमत। उसी को कहते हैं हिकमत। और जिसके पास हिकमत आ गई ना, इंशाअल्लाह, अकल तो जैसे अल्लाह ने दी है अपन को, हिकमत और इल्म अपन ले ही रहे हैं। इल्म अपन कोई भी ले सकता है, इल्म नॉलेज तो कोई भी ले सकता है, पढ़ के, सुन के, ये वो। पर ये दोनों सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसीलिए मात खाते हैं, क्योंकि अकल होती है, इल्म हासिल कर लेते हैं, पर जब ये हिकमत नहीं होती ना, तब फिर हमारा वो सारा ये सब दारो मदार है ना, खराब हो जाता है कि यार ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये नहीं है, ठीक है। तो इसी पे हम जोर देंगे इंशाल्लाह।
फिर किसी का ये लोभ है साउंड का, तो किसी की पता है आवाज़ अच्छी होती है, साउंड आवाज़ कितनी प्यारी होती है। जैसे अपन लोग तो, मुझे उम्मीद है कि कोई भी गाने नहीं सुनता होगा, तो कितने गाने प्यारे प्यारे गाते हैं, तो उनकी साउंड अच्छी होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि जो कारी है किरात, जैसे मैं कुरान शरीफ की अलग अलग किरात सुनती हूँ तो ताज्जुब करती हूँ कि या अल्लाह ऐसी साउंड मुझे भी दी होती। मेरा ये है ना लोब एक्चुअली एक्टिव नहीं है, तो ये जो किरात है ना, साउंड अच्छी मीठी आवाज़ जो है ही नहीं। किरात बहुत मन करता है कि ऐसी किरात हम भी पढ़ें, कुरान ऐसे किरात से पढ़ें, है ना, अच्छी उसकी तलफ़ुज़ से पढ़े, पर नहीं होता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं तो कितना मज़ा आता है। आपको अलग अलग कारियों की आप आवाज़ सुन के देखिए, बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ लोग फिलोसोफर होते हैं। फिलोसोफर मतलब ज्ञानी, बहुत ज़्यादा उम्दा, उनको बहुत टाइप का अलग अलग टाइप का नॉलेज होता है, तो वो होते हैं ज्ञानी। कुछ लोग लॉजिक होते हैं। लॉजिक मतलब वो टेक्निकल, जैसे इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर्स मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, और फिलोसॉफी में साइंटिस्ट आते हैं। मतलब अलग अलग टाइप, पता नहीं, जो हमारे सोच से परे है। आइंस्टाइन ने क्या करा था, पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ के नीचे कई लोग बैठते हैं, पर आइंस्टाइन को दिमाग में आया कि सेब नीचे कैसे गिरा, ग्रेविटी सोर्स और वो सब उसने इजाद किया, है ना। और एक बात और बता दूं, जितने भी साइंटिस्ट है ना, ये कुरान के जरिए ही सारा नॉलेज बाहर फेंकते हैं। ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमको कुरान अल्लाह ने हमको दिया है, और ये जो गैर मुस्लिम है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे। इसीलिए हमको जालिम करार दिया गया और हमारे पे ये अजाब नाजिल हो रहा है। ये आपको आगे जाके समझ में आएगा कि कुरान की अहमियत नहीं समझने का जो भुगतान है वो कितना खतरनाक भुगतान है। ठीक है, कुरान को नहीं समझना, फिर समझने के बाद भी अमल नहीं करना, फिर अमल करना और अमल छोड़ देना, कुछ करना कुछ नहीं करना सहूलियत के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह करेंगे कवर। ठीक है, तो कुल मिला के समझाने का मतलब था कि ये जो ब्रेन्स है ना, ये ब्रेन में अब जो शैतान है वो वसवसे कहाँ डालता है, दिल और दिमाग में डालता है। फिर दिल की बात अपन बाद में समझेंगे, अभी दिमाग की बात समझते हैं। तो ये सारी जो स्किल्स है ना, कुल मिला के मैं ये कह रही थी, जैसे एक्टर्स है, मैं एक्टर्स की बात बता रही थी, वो कैसे डायलॉग याद कर लेते हैं, है ना। हाफिजुल कुरान है, ये सब कैसे हिफ्ज कर लेते हैं, उनका ये लोब्स है ना बहुत सुपर एक्टिव होता है। अच्छा, ये सब हम अब सबके दिमाग में आ रहा होगा, काश ये सारे लोब्स मेरे एक्टिव होते हैं, मैं इसमें भी उम्दा, इसमें भी उम्दा। अच्छा, ये इमोशंस का मैं भूल गई बताना कि इसमें एक्साइटमेंट, इसमें बहुत चीजें आती है। मतलब डिटेलिंग तो देखो, फिर अपन ये पढ़ाई नहीं कर रहे, अपन एक्चुअली दीन की पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि ब्रेन कैसे काम करता है। अल्लाह ताला ने क्या हमें जो ये पुर्जा, जो शरीर का जो मशीन दी है ना, बहुत सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड दी है। अगर शरीर को हम पढ़ लें तो शरीर की जो मैनेजमेंट अल्लाह ने करी है ना, बहुत ही बेहतरीन करी है। तो दिमाग को समझिए आप, तो ये जो लोब्स है अगर उसको सबको एक्टिव कर देंगे तो हिकमत आ जाएगी। कुल मिला के बताने का मकसद ये था। तो डेली बुरी आदत में जो ये बैड इमोशंस है, उस इमोशंस को हमें खाली करना होगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर इसको खाली करेंगे तब ये दिमाग में अच्छे इमोशंस आएंगे। ठीक है, तो बुरी आदत को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि बुरी आदत निकलेगी तो अच्छी आदत डलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आज इस पे एक छोटा सा टॉपिक था वो जो मैंने डाल दिया। और अब आपको बुरी आदत एक आज छोड़नी है। जैसे आज पूरा दिन झूठ बोलने से बचना है। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, पर मेरे नज़दीक झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे नज़दीक नहीं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों से हमें समझा दिया है, पर हमारे में हिकमत नहीं है। मैं बताऊंगी आपको झूठ कैसे सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, अगर ये निकल गया हमारी ज़िंदगी में से तो इंशाअल्लाह दूसरे बाकी के सारे गुनाह निकल जाएंगे। ठीक है, और जिस दिन ये 100% निकल गया, रिस्क की बारिश होगी इंशाअल्लाह मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो ये हो गई आपका 5वां काम कंप्लीट। अब छठा, अब जो छठा काम है, जैसे ये हो गया ना, तस्बीह का हो गया। सेकंड अच्छा काम वो तो आपको करना है अमल में लाना है, तो वो आपने कर लिया। मान लो जैसे मैंने लिखा है कि आज मैंने तबीयत पूछी, ठीक है, मम्मी की, पापा की, दोस्त की, जो भी बीमार है या बीमार नहीं भी है, तबीयत पूछ ली या किसी को हंसा लिया
या गाय को रोटी खिला दी, चींटियों को खिला दी, कुत्तों को खिला दी, या गाय को पानी पिला दिया, या चिड़ियों को पानी पिला दिया। मतलब कोई भी एक अच्छा काम करना, छोटा सा जो 1 सेकंड में, पर वो डेली वे रूटीन में चालू कर देना। फिर डेली एक हदीस मैंने नहीं बताई क्या आप लोगों को अभी तक? हाँ, डेली एक हदीस पे आते हैं। चलो अपन यही कवर कर लेते हैं। तीसरा, डेली एक हदीस। ठीक है, डेली एक हदीस में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हदीस है क्या। हदीस का तारुफ करवा देती हूँ, आपको लिख कर बता देती हूँ। जैसे हदीस जो है ना, हदीस का मतलब होता है बताना। कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हदसना मतलब बताना, आपको बताया। जो अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। ठीक है, तो उन्होंने और अखलाक क्या है, जो उन्होंने करा। सुन्नत क्या है, सुन्नत बोलते हैं ना, सुन्नत को फॉलो करो। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा ही है, ये करो वो करो ये करो, और खुद ने नहीं करा। नहीं, उन्होंने करके भी बताया, उन्होंने कह के भी बताया। मतलब उन्होंने हर तरीके से, वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए। ठीक है, और अगर उनको 100% फॉलो करने लग गए तो अल्लाह अपने आप राज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें 100% कैसे हम उनको फॉलो करेंगे कि हम उनकी ऑटोबायोग्राफी को समझेंगे। मतलब ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी पूरी जीवन, उनका जीवन, वो जब से पैदा हुए थे और जब से वफ़ात पाए थे, तब से पूरा उनका स्टोरी, उनकी कहानी, उनकी एक मूवी टाइप जैसे हम इंशाल्लाह धीरे धीरे समझेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने हमारे लिए कितनी तो मुश्किलात को झेला है। हमें बस समझाने के लिए, अल्लाह का हमसे इंट्रोडक्शन करवाने के लिए, और अल्लाह की पहचान करवाने के लिए, और अल्लाह का दीन समझाने के लिए, अल्लाह का कलाम समझाने के लिए, अल्लाह का हुक्म समझाने के लिए, अल्लाह ने क्या कानून कायदे इस्लाम में बनाए हैं, क्या सीरत है, सीरत मतलब क्या लॉज है, क्या कानून है, कौन सा तकलीफ़ हो तो क्या काम करना है, कौन सा बात निकले तो उसमें क्या करना है, हर चीज़ कुरान पाक में अल्लाह ने बता दी है। तो कुरान क्या है, अल्लाह ताला का हुक्म है जो अपन को वही के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। ठीक है, तो वो तो हो गया कुरान। पर कुरान में सारी बातें समझ में नहीं आती। जैसे कुरान में सिर्फ लिखा है अस्सलातु व ज़कातु, हर बार लिखा है, मतलब नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। अब नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, वो कौन बताएगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने जो बताई वो हदीस में रिटर्न में लिख दी। हमारे जितने मुफस्सिर है उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर उन्होंने लिखी नहीं होती तो वो हम तक नहीं पहुंचती ना, क्योंकि हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे ना। तो वो लिखी है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिजी शरीफ, दाऊद, जितनी भी हदीस है, तो उन लोगों ने इतनी मेहनत कर करके इकट्ठा करके उन्होंने कलेक्शन किया, तो वो होती है हदीस। समझ गए? तो करके उन्होंने कलेक्शन किया तो वो होती है हदीस। समझ गए? तो आपको आज के बाद पता चल जाएगा कि हदीस क्या है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी आदत है, काम है, उनके टीचिंग्स है जो हमें बताएं कि बीमार पड़ो तो, और ये बीमारी हो तो ये करो, ये बीमारी हो तो ये करो, तो ये सारा तिब्बत नबी में भी हमें मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या है, हमें नॉलेज नहीं है। और वही बात मैंने बताई कि अक्ल सबको अल्लाह ने बाय बॉर्न दी है। फिर उसके बाद हम इल्म हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, कुछ लोग दीनी, और कुछ लोग दोनों। उसके बाद भी फिर अमल पे आते हैं, तो अमल भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। ज़िक्र भी बहुत करते हैं, कुरान भी बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। पर फिर अमल में भी क्या होता है कि अमल करने का उनका तरीका सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिकमत नहीं है ना। तो हम फोकस ज़्यादा हिकमत पे करेंगे कि हमें अमल करना कब है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन सा अमल कब करना है, कौन सा अमल किसके लिए करना है। ये सारी चीज़ें अगर आ गई इंशाल्लाह तो फिर हमारे मुकम्मल हम उस सुन्नतों को मतलब फ़ॉलो करने वाले हो जाएंगे। और जब सुन्नतों को फ़ॉलो करने वाले हो जाएंगे, हमारे मतलब टीचर के हिसाब से हम चलेंगे। हमारे टीचर कौन है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे टीचर के हिसाब से स्टूडेंट अगर 100% चलेगा, जैसे टीचर बताता है, फिजिक्स भी सिखाता है, बायोकेम भी सिखाता है, केमिस्ट्री भी सिखाता है। सॉरी, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो यही सब्जेक्ट बोल रही हूँ। मतलब और भी जैसे आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, मॉरल साइंस है, और हिंदी है,
इंग्लिश है, जो भी हमारे टीचर अलग अलग हमको सिखाते हैं ना, तो हम किसी में तो बहुत आगे होते हैं। इंग्लिश में 100 में से 100 ले आते हैं, SST में 100 में से 100 ले आते हैं, और हिंदी में हम 50 ही ला पाते हैं, और केमिस्ट्री में हम फेल भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझ गए ना। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर है, तो हमें उन्होंने कुरान सिखाया, तो सबसे पहले हमें कुरान भी सीखना है। और कुरान में ही है, कुरान में तो पूरा ज़िंदगी, पूरी कायनात, क़यामत, धन दौलत, ये वो, कुरान में सब चीज़ें आ गई है। पर कुरान हमें समझ कब आएगा? जब हम अल्लाह ताला के नबी को पहले समझेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझेंगे, उनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे, उनकी खुद की जीवन यात्रा पढ़ेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उनकी पूरी, उनका सारा सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा हमें, मतलब उन्होंने क्या करके दिखाया, वो हो गई सुन्नत, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या कहा हमें करने के लिए, और किस चीज़ से मना किया नहीं करने के लिए, तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर इंशाअल्लाह पढ़ के फिर उसको अमल में लाएंगे, और कैसे अमल में लाना है वो भी समझेंगे, और क्यों लाना है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हदीस। ठीक है, तो ये हदीस के रिलेटेड छोटी सी मैंने बात बता दी। अब आज सबसे पहली हदीस हम सीखेंगे। और हदीस के रिलेटेड एक और बात बताऊं कि स्कॉलर्स ने कहा है कि अगर कोई बंदा 40 हदीस, छोटी मोटी 40 हदीस को पढ़ ले और उसको हिफ्स कर ले और उसको सीख ले, अपनी भाषा में समझ ले कि भाई अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्योंकि अरबी लैंग्वेज हमें आती नहीं है, हम अजमी हैं, तो उसको हमें, हमारा एक काम और बढ़ जाता है। अरबियों को तो अरबी आती है, तो उनको तो डायरेक्ट समझ में आती है, पर हमें तो वो समझनी भी हमारा एक काम है। तो खैर उसका अजर भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो क्या कह रही थी मैं, उसको समझना है, फिर उस पर अमल करना है, और फिर उस पर अमल पे बरकरार रहना है ना। ऐसा नहीं है कि नमाज चालू कर दी, जैसे रमज़ान में अब अक्सर लोग, ज़्यादातर जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो रमज़ान में खूब कसरत से पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। और कुछ लोग हज उम्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी बेनमाजी कितना भी हो, वहाँ नमाज पढ़ता ही पड़ता है, पढ़नी पड़ती है। मदीना में 40 नमाज हर बंदा पढ़ता है, चाहे जुम्मे की, ईद की नमाज कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, पर वहाँ पढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वन टाइम करके छोड़ देना है, मौत तक हमें इस पे कायम रखे। इसीलिए तो लिखा है कि नमाज पढ़ो, नहीं लिखा है नमाज कायम करो। कायम का मतलब क्या होता है? कायम का मतलब अल्लाह का नाम है ना, कय्यूम, मतलब कयामत तक जिंदा रहने वाला, कयामत तक रहने वाला, टिकने वाला। तो हमें मौत तक कायम रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस एक दो बार पढ़ के और बस अपना काम हो गया, और अब अपने पास धन दौलत सब कुछ आ गई, अब अल्लाह को भूल जाओ। और कुरान में लिखा है कि जब मैं मेरे बंदे को उसकी मनचाही चीज़ दे देता हूँ तो खुश हो जाता है, और मनचाही चीज़ छीन लेता हूँ तो मायूस हो जाता है, और जब मनचाही चीज़ दे देता हूँ तो खुश भी हो जाता है और मुझे भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।